हाँ जी अरोड़ा जी, कर दो स्टार्ट। करें स्टार्ट। लेवल पर मुझे अवेलेबल हो तो। मेरी चिंता नहीं करो, मैं अवेलेबल ही अवेलेबल हूँ। सर अवेलेबल हो? ठीक है सर, ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं सर। ठीक है सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। I, on the behalf of Sonipat branch of NIRC of ICI, a very welcome to our today guest speaker, CA Pramod Jain ji, our branch chairman, CA Anuj Mangla ji, vice chairman, CA Saraj Jain ji, and ex-chairman and executive member of ICI branch Sonipat, CA Prince Mittal ji. I also warm welcome and presence and appreciate the presence of our all other respected members. It is our privilege to hear CA Pramod Jain sir on live webcast and sharing his valuable knowledge on topic all TDS provisions and TCS provision under Income Tax Act. Sir, we have gained a lot of knowledge from you in the area of taxation and company law matters through seminars, webinars, and the personal telephonic conversations also. Here is profile of CA Pramod Jain ji. He is a Central Council member of 2019-2021. He is a commerce graduate from Shri Ram College of Commerce. He is fellow member of Institute of Chartered Accountant of India. He is fellow member of Company Secretary of India. He is fellow member of Cost and Work Accountant of India. He is Bachelor of Law. He has qualified Information System Auditor. He is insolvency professional also. He is also member of All India Management Association. He has passed the certification course NCFM of National Stock Exchange of India. He has also done certification course of CAT of ICAI. He has also done qualification certification course on valuation of ICAI and member of more than 25 committee of ICAI. Besides this, he has expert panel of chartered accountant of for resolving the problem of all CA members. He has delivered almost 500 lectures on the various topics on income tax, corporate law, etc. Now I invite our branch chairman, C. Anuj Mangla, for welcome speech of C. Pramod Jain ji. Thank you Aroड़ा ji. Good afternoon everybody. On behalf of Sonipat branch of NIRC of ICI, I Anuj Mangla, chairman of Sonipat branch. Welcome all of you. Friends, today webinar topic about TDS and TCS provision under Income Tax Act. Our today webinar guest speaker CA Pramod Jain ji, Central Council member of ICI. I can say hub of knowledge. आज हर तरफ प्रमोद जी छाए हुए हैं, हमेशा इनकी वेबिनार फुल नॉलेजेबल फ्रेंडली एनवायरनमेंट में होती है। साथ ही साथ हमारे साथ सोनीपत ब्रांच के कुछ पास्ट चेयरमैन भी जुड़े हैं, मैं उनका भी वेलकम करना चाहूंगा। साथ ही साथ पानीपत ब्रांच के जैसा मैं देख पा रहा हूँ भूपेंद्र दीक्षित जी सेक्रेटरी ऑफ पानीपत ब्रांच हमारे साथ जुड़े हैं। इनके साथ हमने पहले भी पिछले कुछ हफ्ते में साथ में एक ज्वाइंट वेबिनार एक सीरीज चलाई, बहुत ही गेनफुल रही, काफी GST 9(9)C पर। मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमारे साथ जुड़े। थैंक यू भूपेंद्र जी, थैंक यू अनुज मंगला जी। अरोड़ा जी, भूपेंद्र जी को बोलो। हाँ जी, thank you Anuj Mangla ji. Now I request CA Bhupender Dixit ji, Secretary of Panipat branch of ICI for addressing us. CA Bhupender Dixit ji. प्रमोद सर नमस्ते। जैन सर नमस्ते। नमस्कार भूपेंद्र जी, वेलकम। सर और अनुज मंगला सर, आपको भी बहुत और पूरी मैनेजिंग कमेटी प्रिंस जी, आप सभी को सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का। और इतने बड़े स्पीकर के सामने प्रमोद जैन सर जी बैठे हुए हैं जहाँ पर TDS मैटर में। सर जैसे आज का टॉपिक रखा है, मैं बड़ा उत्सुक था इस टॉपिक के लिए। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक दिक्कत भी आई थी, मैं एक फॉर्म 26CS देख रहा था, तो उसमें जैसे SFT की रिपोर्टिंग आजकल आ रही है, तो उसमें जैसे किसी पार्टी का सर किसी बैंक ने SFT का वो किया और लास्ट में O&R करके कुछ आ रहा है सर, वो चीजें थोड़ा सा एक पूछना चाह रहा सर, वो O का क्या डिनोट करता है, R क्या डिनोट करता है सर वहां पर। और बाकी तो सर आप तो ज्ञाता हैं ही हर चीज के और जैसे भी बताया कि मोर देन 25 कमेटियों के आप मेंबर हैं एज ए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। तो सर आपको नतमस्तक है, आप जैसी पर्सनालिटी को और आप जैसे लीडर को हम सभी का सर बहुत बहुत
नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन कि आप पानीपत सोनीपत की नगरी में आपने प्रेजेंटेशन के लिए सोनीपत ब्रांच का इनविटेशन स्वीकार किया। थैंक यू चेयरमैन सर अनुज जी, और थैंक यू राजेश जी। Thank you, Bhupender Dixit ji. Now I request Pramod Jain sir to start his technical session on TDS and TCS provision. Thank you very much, Rajesh ji. Thank you. Chairman Anuj Mangla ji, Vice Chairman Saraj Jain ji, Secretary Rajesh Arora ji, immediate past Chairman Prince Mittal ji, Secretary Panipat Branch Bhupender Dixit ji, and all my dear friends from Sonipat and Panipat. Sabko mera namaste, and I thank Sonipat branch for inviting me to share my views on the recent TDS and TCS issues. जब मैं TDS TCS के recent के issues बात करता हूँ, तो हाँ अभी कुछ changes आए हैं जो कि अपने इस साल से ही applicable हुए हैं, तो हम उसी के ऊपर ज़्यादा emphasize करेंगे, और किसी का TDS TCS से related और कोई भी issue हो तो वो अपन उसको डील कर सकते हैं। बट पहले एक जो अपने ये नए इश्यूज आए हैं, इसको एक बार अपन अंडरस्टैंड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, बिकॉज ये अपने आप के अंदर काफी सारा क्योंकि पुराना तो काफी टाइम से सब कुछ सेम चल रहा है। सो लेट अस टॉक अबाउट समथिंग द रीसेंट इश्यूज ऑन दिस TDS TCS. प्रमोद सर, आपका एक बार अनम्यूट। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही सर। अच्छा, वो मेका से म्यूट कर दिया होगा, अब आ रही है ना? हाँ जी, क्लियर। राइट। तो हमारे को जब ये TDS TCS की कंप्लायंसेस की पहली रिपोर्टिंग जो मेरे को रहती है, मेरे को अगर मैं बात करूं तो दो जगह रहती है। एक तो जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करता हूं, तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करता हूं तो एक इनकम टैक्स का प्रोविजन करता हूं, और ये प्रोविजन जो है ये मैंडेटरी है इवन फॉर प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप। कहाँ से मैंडेटरी है? इफ आई टॉक अबाउट देन मेरा AS 22 जो बात करता है कि आई हैव टू प्रोवाइड फॉर द करंट टैक्स एज वेल एज द डेफर्ड टैक्स, तो मेरे को वो अकाउंटिंग फॉर टैक्सेशन के हिसाब से वो मेरे को प्रोवाइड करना पड़ता है। तो मैं प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में कई जगह नहीं करता, तो आई शुड स्टार्ट डूइंग दैट इफ आई एम नॉट डूइंग बोथ फॉर द करंट टैक्स एज वेल एज द डेफर्ड टैक्स। तो एक तो मेरे को वहां पर प्रोविजन जब करूंगा तब मेरे को चेक करना है कि उसका अगर TDS कटा है नहीं कटा। अगर नहीं कटा तो फिर 40AI में 30% जो डिसअलाउंस होता है उसका ध्यान रखना है, राइट। और कई लोग ये भी जब अपन बात करते हैं तो ये बात करते हैं कि भाई मैंने तो, जैसे बड़े एक सिंपल सी बात कहूं कि एक असेसी है जिसका जो कि 44 AD में कवर्ड है, और वो 44 AD में कवर्ड है, और मान लीजिए उसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ थी पिछले साल, तो हम कहते हैं जी उसका कोई डिसअलाउंस तो होगा नहीं 40AI में, क्या उसको TDS के प्रोविजन एप्लीकेबल है? हाँ एप्लीकेबल, मैंडेटरी है क्योंकि उसका टर्नओवर 1 करोड़ क्रॉस कर गया। कहता 40AI में डिसअलाउंस नहीं होगा? हाँ नहीं होगा, लेकिन नॉन डिडक्शन की जो उसकी पेनल्टीज हैं, इंटरेस्ट है, वो सब तो एप्लीकेबल है ना। तो जब भी आपको क्लाइंट पूछे आपने हमेशा सही कहना कि हाँ भैया नॉन कंप्लायंस है, इंटरेस्ट पेनल्टी लग सकती है। प्लीज, मेरे ख्याल से अब तो कोई भी ऐसा अपना भाई नहीं होगा जो कि क्लाइंट को ये कहता हो तू कर ले मैं देख लूंगा, मैं संभाल लूंगा। अब वो टाइम बिल्कुल चला गया। अब ये बोलो नहीं जी मेरा कोई जिम्मेवारी नहीं है, हम तो आपको कहेंगे कंप्लायंस करो, अगर आप नहीं करते हो तो जिम्मेवारी आपकी है, हमारी नहीं है। हम आपकी उस वक्त हेल्प कर देंगे जो लीगली होगा, लेकिन अगर कोई चीज, क्योंकि आज की डेट में सब कुछ कंप्यूटराइज्ड और सब कुछ नॉलेज में आ जाएगा, तो हम उस चीज को बचा नहीं पाएंगे आपको। हाँ, कितना कर सकते हैं लीगली वो कर पाएंगे, राइट। क्योंकि अब तो वैसे भी मेरी जो अपील्स हैं वो
और असेसमेंट जो है दोनों की दोनों फेसलेस है, तो वो पहले वाला काम जाके ईओ को समझाने वाला काम तो खत्म हो गया. So it has to be everything online, and there it would be very, very tough to explain your things which are factually there and with the evidence. So how can we go state anything against that? So please tell all our clients, all your clients, that yes, please comply, and there should be no hodgepodge into the compliances, I would say. ये 194N सेक्शन क्या है? पहला ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ था फाइनेंस एक्ट नंबर 2 2019 से लास्ट ईयर में, और जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि ये कहा था कि अगर कोई बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि आप कैश विड्रॉ करते हैं 1 करोड़ रुपए से ऊपर, तो 2% का आपका टीडीएस डिडक्ट होगा. हाँ, ये पिछले साल ही आ गया था, तो पिछले साल से अभी भी सेम एप्लीकेबल है. बट जब इस बार का फाइनेंस बजट आया, फाइनेंस बजट के कमुआ में फाइनेंस बिल 2020, उसमें इसके अंदर कोई चेंज नहीं था. बट जब इसकी अमेंडमेंट लोकसभा में प्रेजेंट हुई, तो वहां पर एक अमेंडमेंट आया, और वो अमेंडमेंट एप्लीकेबल है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2020. तो आप ये देखेंगे कि जो बजट के लेक्चर्स हुए थे उसमें इसका कोई जिक्र नहीं होगा. ये उसके बाद प्रोविजन आया, और उसके अंदर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया, अगर इन केस अ रिसिपिएंट इज देयर जिसने अपनी आईटीआर फाइल नहीं किया फॉर ऑल 3 असेसमेंट ईयर्स, जिसके लिए की टाइम लिमिट खत्म एक्सपायर हो चुकी है, टू फाइल आईटीआर अंडर सेक्शन 139(1) immediately preceding the previous year in which the payment of sum is made to the him, then लिमिट जो मेरी 1 करोड़ के ऊपर 2% थी, वहां पर अब मेरी लिमिट कितनी है? 20 लाख रुपए. सो 20 लाख से 1 करोड़ 2%, और 1 करोड़ से ऊपर 5%. मान लीजिए अगर आपकी ये कंडीशन कंप्लाई हो जाती है, तो आपकी लिमिट 1 करोड़ पे 2% है. लेकिन अगर ये लिमिट कंप्लाई नहीं होती, तो मेरी 20 लाख से 2% चालू हो जाती है, और बहुत सारे केसेस के अंदर इतने का तो मार्जिन ही नहीं होता. और इसके अंदर, इस प्रोविजन के अंदर हम लोअर टीडीएस के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते. अब इसके अंदर जो बात हमारे को ध्यान में रखनी चाहिए, ये क्लाइंट भी हमसे पूछेंगे, कुछ चीजें अभी भी इसके अंदर सेटल्ड नहीं है मेरे हिसाब से. कुछ चीजें हो सकता है डाउटफुल हो, बैंकर्स हो सकता है जो बैंक ऑडिट वगैरह करते हैं उनको शायद थोड़ा सा ज्यादा आइडिया हो, बिकॉज दे मस्ट हैव सीन इट. अब ये कहते हैं कि फॉर विच द टाइम लिमिट टू फाइल आईटीआर अंडर सेक्शन 139(1) has expired immediately preceding the previous year in which the payment of sum is made. तो क्या मतलब, अगर मेरी बिलेटेड आईटीआर है तो मेरा लिमिट 20 लाख हो जाएगी. 20 लाख से ऊपर कैश विड्रॉ करूंगा तो टीडीएस कट जाएगा. मेरे हिसाब से इसका जो मतलब बनता है वो ये बनता है कि मान लीजिए जैसे मैं अभी बात करता हूं करंट असेसमेंट ईयर, तो आज मैं अगर पैसा विड्रॉ करता हूं, अब मान लीजिए मार्च 20 की 139(1) की ड्यू डेट क्या है? एक केस में 31 दिसंबर है, और एक केस में मेरी 1 जनवरी 21 है. ठीक है, ये मेरी नॉन ऑडिटेबल केस, ये ऑडिटेबल केस. मैं केस लेता हूं मेरा नॉन ऑडिटेबल ही ले लेते हैं. ठीक है जी, नॉन ऑडिटेबल ले लेते हैं. तो 31 दिसंबर 2020 की मेरी डेट. तो आज की डेट में अगर मैं कैश विड्रॉ करता हूं तो मेरे को 3 साल कौन से देखने हैं? 17, 18 और 19. पिछले 3 सालों की आईटीआर, क्योंकि 20 की तो भी ड्यू डेट आईटीआर 139(1) की फाइल ही नहीं हुई है. और इनमें से किसी एक साल के अंदर मेरा अगर बिलेटेड भी है तो कोई दिक्कत नहीं है. मेरे को ये देखना है कि जो मेरा आज जब मैं विड्रॉ कर रहा हूं तो उसका जो 139(1) है कि ड्यू डेट, वो अगर एक्सीड कर गई, जैसे मान लीजिए अभी मैं आज विड्रॉ कर रहा हूं तो मेरे को देखने पिछले 3 साल ये वाले. लेकिन अगर मान लीजिए इसी केस के अंदर मैं 4 जनवरी को करता हूं विड्रॉ, तो फिर मेरे को देखना पड़ेगा 18, 19, 20, क्योंकि इस केस के अंदर 139(1) की डेट एक्सपायर हो गई है. राइट, तो 3 साल मेरे को ये देखने हैं. 139(1) जिस साल में विड्रॉ कर रहा हूं उसके बाद, अब मान लीजिए मार्च 21 की बात आएगी, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, क्योंकि 139(1) की डेट एक्सपायर नहीं होगी, तो जुलाई तक मेरे को 3 साल की रिटर्न देखनी है. जैसे ही जुलाई खत्म होगा तब मेरे को 19, 20, 21 देखनी होगी. राइट, सो इसमें तो ऐसा लगता है कि डाउट होना नहीं चाहिए, अनलेस कि बैंकर्स कुछ और समझे. आई डोंट नो. सेकंड, ये कहता है in case of a recipient who has not filed ITR for all 3 assessment years. इसका मतलब क्या हुआ?
क्या मेरे ये जो 3 साल की रिटर्निंग है, ये तीनों ही फाइल होनी चाहिए, या तीनों में से एक फाइल हो जाए तब भी काम हो जाएगा? अगर ये व्यू लिया जाता है कि तीनों फाइल होनी चाहिए, तो आज आप मान लीजिए किसी एसएससी का बेटा मेजर हुआ, तो क्या उसकी 4 साल तक, क्योंकि 4 साल लगेंगे तीसरा साल पास करने के बाद, तो जुलाई तक, तो उस केस के अंदर उसकी लिमिट 20 लाख ही रहेगी? मेरा एसएससी ऐसा हो सकता है ना जिसको सारी पेमेंट ही कैश में करनी है, वो मेरा कंस्ट्रक्शन वर्कर है, कंस्ट्रक्शन का उसका जॉब है, तो उसको पैसे सारे कैश में देने पड़ते हैं, ऐसा काम हो सकता है। सो इन दैट केस क्या उसकी 3 साल तक 20 लाख रहेगी? चलो एक एसएससी के मेजर होने की बात छोड़ो, एक न्यू कंपनी है, एलएलपी है, क्या होगा 3 साल तक क्या 20 लाख की लिमिट रहेगी? आई डोंट थिंक सो। ये कैसा कैसा कभी इंटेंशन होना भी नहीं चाहिए। और बैंकर क्या कर रहे हैं, क्योंकि बैंकर ने जब स्टार्टिंग में नोटिस भेजा, तो उन्होंने नोटिस ये भेजा कि पिछले 3 साल की आईटीआर दे दो, तो उनके हिसाब से तो तीनों साल की फाइल होनी चाहिए। अब इसकी वर्डिंग क्या है? He has not filed ITR for all 3 assessment years. यानी कि not filed ITR for all 3 assessment years. अब मैंने अगर 1 साल की फाइल कर दी, तो can it be said that I have not filed ITR for all 3 assessment years? No, I have filed for 1 year. तो अब ये इंटरप्रिटेशन है, ये लैंग्वेज का इशू है। कर तो दिया यार। सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। सर ये कितना रहा था मेरे ख्याल से, ये ये आप 17, 18, 19 उसके बाद ही आवाज नहीं आई आपकी। 17, 18, 19 ये बिलेटेड आईटीआर पे, या ये नहीं, यही बिलेटेड तक आया आइटम था? नहीं। जब आपने कहा कि वो उसने नई नई वाले एसएससी ने रिटर्न नहीं भरी। अच्छा, नए वाले एसएससी वो की चल रहा था ना, हाँ जी 3 हाँ जी, साल तब की। से आपकी वॉइस नहीं। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, एक बार स्क्रीन शेयर अलाउ करना प्लीज। अजय जी स्क्रीन शेयर अलाउ कीजिएगा।
एक अनुज को बोलता हूँ सर, मेरे यहाँ से नहीं हो रहा ये। अनुज जी जरा स्क्रीन शेयर अलाउ करवा दीजिए। सर स्क्रीन शेयर अलाउ क्यों है? आप को होस्ट हो। बाहर चला गया था इसलिए कह रहा हूँ, वो नेटवर्क इशू आ गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी आया नहीं अनुज जी। सर जी स्क्रीन शेयर अलाउड कर रखी है, आप भी को होस्ट हो, आप भी कर सकते हो। मैं अभी कोस्ट नहीं हूँ। आप अभी नहीं हो, एक सेकंड। अब हुआ है। हाँ जी। सो ये न्यू एसएससी के केस के अंदर ये 3-3 साल तक अगर मेरे 20 लाख की लिमिट रहेगी तो बहुत सारे बिजनेस में इशू आ जाएगा। अभी तक गवर्नमेंट ने कोई क्लैरिटी दी नहीं है और बैंक अपने हिसाब से चल रहे हैं। तो पहले 3 साल तक अगर उन्होंने सॉफ्टवेयर में 20 लाख रुपए की लिमिट डाल दी तो हमारे एसएससी को बहुत दिक्कत आ जाएगी। सो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब बैंक्स ने अपनी वर्किंग को सिंप्लीफाई करने के लिए सीबीडीटी ने एक यूटिलिटी क्रिएट की है। अब ये यूटिलिटी में क्या बेनिफिट दिया है, क्या चीज आ रही है, ये तो जो बैंक का ऑडिट करते हैं या बैंकर्स हैं वो ज्यादा बेटर बता पाएंगे, बिकॉज ये कंप्लायंस तो करनी है बैंकर्स नहीं, बैंकर्स एंड पोस्ट ऑफिस एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। लेकिन हाँ, जो हमारे सीए ब्रदर्स who would be going to do the bank audit और जिसके ये कंप्लायंस में स्पेशली टैक्स ऑडिट, तो मेरे को अगर 40A IA के कोई डिसअलाउंस तो होनी नहीं, बिकॉज आई एम नॉट क्लेमिंग एनी एक्सपेंडिचर, बट यस द रिपोर्टिंग वुड बी देयर अंडर क्लॉज 34 ऑफ 3CD। तो वहां पे तो मेरे को रिपोर्टिंग देनी ही पड़ेगी। तो वहां पे मेरे को चेक करना पड़ेगा कि भाई किस बेसिस के ऊपर कितना परसेंट TDS कलेक्ट डिडक्ट किया कि नहीं किया, राइट। एनी क्वेश्चन ऑन 194N? किसी का कोई क्वेश्चन हो 194N में तो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कर दें, है ना। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो चैट बॉक्स में टाइप करते रहें, तो जैसे मैं एक एक सेक्शन क्लोज करता जाऊंगा तो उसके ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो उसको साथ साथ लेके क्लियर करते चलेंगे, राइट। 194N में जो एग्जेम्पशन दे रखी है, क्योंकि ये 2019 से आया था, तो यस, ये जो मेरी कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसीज हैं, फ्रेंचाइजी एजेंट हैं, वाइट लेबल ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM वाले, या फिर मेरे APMC के अंदर जो कमीशन एजेंट हैं, सिर्फ APMC के कमीशन एजेंट जो कि रजिस्टर्ड हैं अंडर एनी लॉ, वो वाले हैं, नॉर्मल आड़तियां नहीं है। या जो मेरे ऑथराइज डीलर्स हैं, फुल फ्लेज मनी चेंजर्स फॉर परचेज ऑफ फॉरेन टूरिस्ट, उनको एग्जेम्पशन दे रखी है। तो अब इसमें होगा कैसे? जो पहले से एग्जाम्पशन है, तो अगर मान लीजिए आपका एसएससी इनमें से किसी एक के अंदर फॉल करता है, तो उसको जाके बैंकर को बताना पड़ेगा कि मैं इसके अंदर आई एम रजिस्टर्ड, तो मैं मेरा ये नेचर है, हेंस आई एम विड्रॉइंग कैश एंड दिस सेक्शन 194N इज नॉट एप्लीकेबल टू मी। Any question on 194N? Then we'll go to another section 194O. अभी तक कोई क्वेश्चन किसी का नहीं? सर एक बार न्यू एसएससी वाला दोबारा बताना, न्यू एसएससी वाला। हाँ जी, हाँ न्यू एसएससी का। हाँ जी, हाँ जी, न्यू एसएससी क्या राजेश जी? सर के लिए क्या होगा अगर वो आइटम नहीं भरी तो उसने, तो उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? भाई अब यही है कि जो डिपार्टमेंट का सोचना है कि 3 साल की होनी चाहिए। अब 3 साल की कैसे होगी? नए एसएससी की तो 3 साल तक हो ही नहीं सकती, जब तक वो नया एसएससी है, नई कंपनी है, नई LLP है। तो उसको 4 साल तक उसकी लिमिट 20 लाख की रहेगी। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए।
मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर पिछले 3 सालों में से किसी एक साल की भी ITR फाइल कर दी है, Okay. 3 सालों में से किसी एक साल की भी ITR फाइल कर दी है, then his limit should be 1 crore and not 20 lakhs. Now we'll have to check with the bankers that what they are taking this, वो कैसे ले रहे हैं, कैसे नहीं ले रहे, right? ठीक है। चलिए, दूसरा सेक्शन है 194O, और हम लोग ये समझते हैं 194O क्या है बेसिकली। 194O की अगर मैं बात करूं तो ये वो सेक्शन है जो कि मेरे ई-कॉमर्स ऑपरेटर को लगेगा फॉर ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पेमेंट करने के लिए, और ये मेरा 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल हुआ है। एंड ये है क्या? ये वो है कि पेमेंट ऑफ सर्टेन सम्स ऑफ मनी बाय ई-कॉमर्स ऑपरेटर टू ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट। तो जो मेरे ये ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं लाइक फ्लिपकार्ट, अमेज़न, उबेर, स्विगी, जोमेटो, जितने भी हैं ये, जो कि एक प्लेटफॉर्म देते हैं वेरियस ई-कॉमर्स, स्नैपडील वगैरह ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट को कि मेरे थ्रू आओ और अपने गुड्स वगैरह बेचो या सर्विसेज दे दो। तो जब वो अपनी ये पेमेंट करेंगे ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट को, तो वो पेमेंट करने पे उसका 1% TDS काटेंगे। अब हम देखेंगे कि बहुत सारे ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट, क्योंकि कई लोग हैं जो कि अपने आप का अपना मटेरियल दे वांट टू सेल इट थ्रू द ई-कॉमर्स ऑपरेटर। वो क्या कहते हैं, अपने गुड्स को मैं हैंडीक्राफ्ट बना रहा हूँ, दिवाली कोई आइटम बना रहा हूँ, फुटवेयर बना रहा हूँ, बैग्स बना रहा हूँ, तो मैं उसको लिस्ट कर देता हूँ ई-कॉमर्स ऑपरेटर की वेबसाइट पे कि भैया मैं आपके यहाँ से बेच लूंगा। तो उस केस के अंदर जब वो आपको पेमेंट करेगा तो उसका वो 1% TDS काटेगा। तो आई हैव टू बी अवेयर। यहाँ पे ई-कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब क्या है? मीन्स अ पर्सन हु ओन्स, ऑपरेट्स और मैनेजेस डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। यहाँ पर बहुत सारे अपने मेंबर्स के फोन आए टू अंडरस्टैंड कि क्या मेरे को ये डिडक्ट करना पड़ेगा। जैसे एक जने का आया कि एक वेबसाइट है जिसके थ्रू लोग बाग टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं, और वो टेंडर में जब पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें वो इम्पेनलमेंट करते हैं, जैसे गवर्नमेंट का ई-टेंडर प्रोसेस है, तो वहां पर वो जो इम्पेनल करते हैं, तो क्या ये ई-कॉमर्स ऑपरेटर हो गया? मेरे हिसाब से मैंने उनका नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई फैसिलिटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स नहीं दे रहे। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब क्या है? मीन्स द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। क्योंकि ये क्वेश्चंस हो सकता है आपके पास भी बहुत सारे आ जाएं, क्योंकि क्या होगा कि लोग जब आजकल ज्यादा डिजिटल जा रहे हैं, तो डिजिटल जाने में एक तो ये हो गया कि मैंने खुद अपने गुड्स बेचे अपनी वेबसाइट, देन आई एम नॉट अ ई-कॉमर्स ऑपरेटर। मैंने अपनी साइट के ऊपर एक लिंक डाला कि आप ऑर्डर करो, मैं सप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर ई-कॉमर्स ऑपरेटर और ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट कोई नहीं है, यहाँ पर ऐसे खुद ही कर रहा है। बट हाँ, एक एग्रीगेटर है जो कि औरों का गुड्स अपने पोर्टल के थ्रू बेच रहा है। अब जैसे एक क्वेश्चन अभी और इस पॉइंट पे आया, ये जो पेटीएम टाइप की कलेक्शन एजेंसीज हैं, ऐसे बहुत सारी एजेंसियां चालू हो गई और बहुत छोटे छोटे लेवल पे चालू हो रही हैं, जिसमें RBI से अप्रूवल लेते हैं और अलाउ कर देते हैं। तो वो बोले जी हम तो कैश कलेक्ट करते हैं और कैश एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर हो जाता है। तो क्या वो ई-कॉमर्स ऑपरेटर? मेरे हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ही नहीं हो रहा, इसमें सप्लाई ऑफ गुड और सर्विसेज कुछ हो ही नहीं रहा, सिर्फ कमीशन मिल रहा है जो कलेक्ट कर रहा है, दैट्स ऑल। सो सर्विसेज भी वो इस तरह की नहीं हो रही। सो ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आएंगे आने वाले टाइम में, और ये ऐसे छोटी छोटी जगह से, बहुत सारी जगह से निकल के आएंगे, आ रहे हैं मेरे पास। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सब टायर 2 सिटीज से ही आ रहे हैं। फर्दर TDS इसमें डायरेक्ट होगा 1% ऑन द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी अमाउंट। सिर्फ एक इसमें एग्जेम्पशन है। एग्जेम्पशन क्या है कि अगर जो ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट है वो इंडिविजुअली HUF है और उसकी टोटल सेल या सर्विस जो है वो 5 लाख एक्सीड नहीं करती और वो अपना पैन या आधार दे देती है, तो उसका TDS नहीं कटेगा। अब इसमें दो चीजें हैं, ये 5 लाख, क्योंकि 1 अक्टूबर से, तो 5 लाख कब से होगा
ये 5 लाख पूरे साल के लिए। मान लीजिए कि उसने अप टू सितंबर 4.5 लाख की सेल कर दी अप टू सितंबर, और उसके बाद अगर वो 1 लाख की करती है तो 50,000 से ऊपर के ऊपर टीडीएस कलेक्ट होना चालू हो जाएगा, राइट। सो टोटल के ऊपर होना है, और इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए जिसके पास पैन आधार वो फर्निश करता है, बाकी के ऊपर नहीं है। अगर पैन नहीं है तो 5%, अदरवाइज वो कहते हैं ना 20% 206AA में 20% अगर पैन नहीं है तो, पैन नहीं है तो आपका होगा 5%। ये उन्होंने इसके अंदर प्रोविजन में दे दिया। एग्जेम्पशन किस चीज की है फर्दर, कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को जो पेमेंट कर रहा है फॉर अदर देन द सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर रिलेटेड टू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा, उसकी एग्जेम्पशन, राइट। और हाँ, इसके अंदर क्या है, अब 194N में देखा हमने 2% 5%, वहां पर मेरे को कोई लोअर टीडीएस के बेनिफिट के लिए नहीं जा सकता, बट 194O में जा सकता हूं, क्योंकि वो कहते हैं कि जब आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू बेचते हैं तो कई बार मार्केट बनाने के लिए आप अपने मार्केट रेट से भी नीचे, कॉस्ट से भी नीचे बेच देते हैं। तो उस केस में अगर आपको लगता है कि आपके लॉसेस हैं तो यस, आपके पास ये काम आ सकता है कि जो आपका ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है जिसका टीडीएस कट रहा है, जो कि ऑनलाइन माल बेच रहा है, उसके लिए आप 197 का सर्टिफिकेट जा सकते हैं फॉर नील टीडीएस और लोअर टीडीएस, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हाँ, इसके अंदर ये प्रोविजन है। एक उन्होंने ये भी इसके अंदर क्लैरिटी दी, जैसे मान लीजिए आपने स्विगी से पिज्जा मंगाया, पिज्जा हट से, तो आपने कहा कैश ऑन डिलीवरी, तो वो आया आपके पास और आपने उसको कैश पेमेंट कर दी, वो चला गया। वो कहते हैं कि अगर कंज्यूमर ने सीधा ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पेमेंट कर दी तो इट विल बी डीम्ड दैट कि ई कॉमर्स ऑपरेटर ने ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पेमेंट कर दी, तो वो भी पेमेंट मानी जाएगी। अब वो कैसे ई कॉमर्स ऑपरेटर इसको चेक करेगा कि जो पेमेंट डायरेक्टली सर्विस रिसीवर ने या गुड्स रिसीवर ने उसको दे दी, तो उसके ऊपर टीडीएस कैसे डिडक्ट करेगा, उसका अरेंजमेंट भी ई कॉमर्स ऑपरेटर को करना पड़ेगा। फर्दर ये कहते हैं कि अगर इस सेक्शन के अंदर टीडीएस डिडक्ट होता है तो ये मेरा चैप्टर 17 का कोई और प्रोविजन इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। एक इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं हम। ये आपका एक क्लाइंट है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ये ना तो ई कॉमर्स ऑपरेटर है ना ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है, ये नॉर्मल आपका क्लाइंट है, आप समझ लो आप खुद हो, इट कैन बी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड या आप खुद हो, और आपने एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू एक कंसल्टेंट हायर किया और आपने उसको प्रोफेशनल फीस दी 2 लाख रुपए की। तो क्वेश्चन ये है, पहला, इसमें जो टीडीएस जो डिडक्ट होना है वो कौन से सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट करेंगे आप, क्योंकि आप ना तो ई कॉमर्स ऑपरेटर ना ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है, ये प्रोफेशनल फी दे रहे हैं 2 लाख की, तो ये कौन से सेक्शन में आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे? अपना आंसर प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। हाँ जी, उदय जी का कहना है 194J, जे भी नहीं, जे ये राजेश अरोड़ा के भी 194J। सोमवीर जी 194A में कौन काटेगा? मैंने आपने आप एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने जिससे सर्विस ली 2 लाख रुपए की, उसका टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा? ललित जी का, राजेश जी का, उदय जी का, सबका 194J कहना है। अगर ये टीडीएस ये नहीं कटता तो क्या ये सेक्शन 40A आईए में डिसअलाउंस हो जाएगा? क्या ये 40A आईए डिसअलाउंस हो जाएगा क्योंकि अगर टीडीएस नहीं कटेगा इस सेक्शन में? हाँ जी, 40 आई में डिसअलाउंस रहेगा इसका टीडीएस नहीं डिडक्ट करने पे। अच्छा, राजेश जी का कहना नहीं, क्यों नहीं होगा? अगर 194J पे टीडीएस नहीं कटा तो
अगर आपने काट लिया तब तो ठीक है, नहीं काटा तो। और सोमवीर जी आपका कहना है 194O कैसे? ये एबीसी प्राइवेट लिमिटेड टीडीएस काटना है, ये तो काट ही नहीं सकता ना 194O में। 194O में तो सिर्फ ई कॉमर्स ऑपरेटर काट सकता है। आप अनम्यूट करके भी आंसर कर सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। हाँ जी सोमवीर जी, मैं आपके आंसर की वेट कर रहा हूं। जो भी हो मन में, यू कैन टाइप और अनम्यूट एन आंसर। हाँ जी, नहीं, इसका देखो आंसर क्या है, क्योंकि ये मैं कह रहा हूं कि ये जो आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये ना ई कॉमर्स ऑपरेटर है ना ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है। और इसने जो प्रोफेशनल फी ली, तो इस केस के अंदर ये कंपनी पेमेंट करते समय इसका टीडीएस नहीं काटेगी, नहीं काटेगी, क्योंकि ये सेक्शन 194O ये कहता है कि अगर इसका टीडीएस कटना है 194O में, क्योंकि मैंने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे लिया, तो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को काटना है ई कॉमर्स ऑपरेटर का। तो अगर 194O में टीडीएस कटेगा तो बाकी किसी भी सेक्शन में उसका टीडीएस नहीं कटेगा। तो यानी कि इसका टीडीएस 10% नहीं कटेगा, 1% कटेगा फ्रॉम 194O ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब इश्यूज इसमें क्या क्या आएंगे, जो कि मैं, क्योंकि मेरा क्लाइंट, अगेन आई एम रिपीटिंग, ही इज नाइदर ई कॉमर्स ऑपरेटर नॉर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, क्योंकि वो उस ई कॉमर्स ऑपरेटर ने, प्लेटफॉर्म वाले ने इस एबीसी का टीडीएस काटना है, मेरे को नहीं काटना, इस एबीसी का नहीं, इस प्रोफेशनल का काटना है, इस कंसल्टेंट का, इसका काटना है, मेरी ड्यूटी नहीं है। अब मेरे बुक्स के अंदर तो ये लीगल प्रोफेशनल के अंदर आ जाएगा खर्चा। जब मैं इसका ऑडिट कर रहा हूँ तो मेरे को ये देखना कि भैया इस पे टीडीएस की लायबिलिटी थी कि नहीं थी, तो मेरे को ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये सर्विस इसने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू ली, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या उसके इनवॉइस के अंदर कहीं कुछ पता लगता है कि ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू है, क्योंकि इस कंसल्टेंट का 2 बार तो टीडीएस नहीं कटेगा ना, एक ही बार कटेगा। सो एज एन ऑडिटर आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। प्लस इशू आएगा सीपीसी का। सीपीसी में तो चलो सीपीसी का इशू नहीं आएगा, आई ग्रेड। सीपीसी का इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो एक्सपेंसेस के हिसाब से टीडीएस नहीं, लेकिन जब मेरा स्क्रूटनी केस आएगा तो असेसी को, असेसिंग ऑफिसर, असेसमेंट यूनिट को समझाना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, एविडेंस देना पड़ेगा कि इसके अंदर मेरा ये एप्लीकेबल ही नहीं होता। तो आई शुड बी नोइंग इट, वेरी वेरी क्लियरली, कि अगर मुझे को वो नहीं पता होगा तो उसके अंदर मैं अपना केस असेसमेंट में सही तरह से नहीं करवा पाऊंगा। So I have to be understanding this section very importantly. और मेरे पास जिस तरह के नए नए क्लाइंट्स और कस्टमर्स के फोन आएंगे, आप सर वॉइस चली गई आपकी। हेलो प्रमोद सर, हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट है, आवाज नहीं आ रही, वैसे डिस्कनेक्ट हो गया आई थिंक, 2 मिनट रुको। ये पता नहीं आज ये नेटवर्क का क्या इशू हो रहा है बार बार। हाँ जी, हाँ जी। वापस सर अलाउ करवाना पड़ेगा स्क्रीन शेयर।
सर जब तक आप स्क्रीन शेयर अलाउ करो प्लीज, ये इस सेक्शन में किसी को कोई डाउट हो कैसा भी, एनी इशू? राइट, तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड अंडरस्टैंड, बिकॉज ये नया सेक्शन है और इसका आने वाले टाइम में ये बहुत ज्यादा डिस्कशन में रहेगा, क्योंकि सारा काम डिजिटल हो रहा है, और डिजिटल हो रहा है, अगर मैं अपने आप को अपडेट नहीं रखूंगा इन प्रोविजंस के अंदर तो मैं आउटडेटेड हो जाऊंगा. सो इफ आई हैव टू रिमेन, आई हैव टू रिमेन इनटू दिस प्रोफेशन, सो आई हैव टू रिमेन अपडेटेड, राइट. इसमें कुछ रिसेंट क्लैरिफिकेशन आई है जो कि 29 सितंबर की है. कहते 194 इज नॉट एप्लीकेबल टू, मान लीजिए मैंने एक बनाया अपना ई कॉमर्स ऑपरेशन, ई कॉमर्स ऑपरेटर हूं मैंने अपनी वेबसाइट बनाई जिसमें मैं लोगों को लिंक करता हूं कि भैया सब अपनी सर्विसेज दो, क्योंकि वहां पे अब टीडीएस कटेगा 1%, मेरा हो सकता है नॉर्मली कर रहा था 5 या 10%, बट और मैंने उसके अंदर पेमेंट गेटवे को किया कि भैया आप पेपाल वगैरह से पेमेंट करो, तो अब ये टीडीएस कौन काटेगा, पेमेंट गेटवे या ई कॉमर्स ऑपरेटर? तो दे हैव क्लैरिफाइड कि पेमेंट गेटवे जो है वो 194 में डिडक्ट नहीं करेगा, अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर ने 194 में डिडक्ट कर लिया ऑन द सेम ट्रांजैक्शन. अब ये आया कि भाई ये कैसे डिटरमाइन करेगा पेमेंट गेटवे की ई कॉमर्स ऑपरेटर ने टीडीएस काटा कि नहीं काटा? तो इसके लिए उन्होंने फर्दर क्लैरिफिकेशन दे दिया कि पेमेंट गेटवे इस मैटर के अंदर एक अंडरटेकिंग ले लेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर से कि जिम्मेवारी उसकी है, तो ही विल बी आउट, तो ही विल बी आउट. सो एक ये क्लैरिफिकेशन इस पे आया. दूसरा एक क्लैरिफिकेशन आया कि ये जो मेरा ई कॉमर्स ऑपरेटर मेरा ये भी हो गए जो कि मेरा इंश्योरेंस की बहुत सारी एजेंसियां डिफरेंट इंश्योरेंस वालों को इकट्ठा किया और उनसे अपनी पॉलिसीज लेते हैं. तो कहते हैं फर्स्ट ईयर में तो हो सकता है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन हो, लेकिन सब्सिक्वेंट ईयर में हो सकता है कि वो उस वेबसाइट से करे नहीं करे, कहीं और से करे या नहीं करे. तो वहां पर उसमें क्लैरिफिकेशन दिया, in years subsequent to the first year, if insurance agent or insurance aggregator has no involvement in the transaction between insurance company and the buyer of the insurance policy, he would not be liable to 194 for those subsequent years. Initial year में तो रहेगा क्योंकि वो लेता ही उस वेबसाइट से, लेकिन हाँ उन्होंने साथ में ये भी कहा जो इंश्योरेंस कंपनी है वो तो अपना टीडीएस कमीशन के ऊपर, इंश्योरेंस के ऊपर जो काटती है वो तो सब्सिक्वेंट ईयर्स काटती ही रहेगी, जो भी उसका कमीशन बनेगा उस पर काटना पड़ेगा, राइट. फर्दर उन्होंने ये भी कहा कि ये 194 हो क्योंकि अब स्टॉक एक्सचेंज का भी प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सारे वो आ गए हैं जिसके अंदर आईएफएससी के ऊपर लोकेटेड है या स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर है मेरे जो ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज है जो सेटल होती हैं बाय रिकॉग्नाइज्ड क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस, क्लियर्ड एंड सेटल्ड. तो वो कह रहे हैं कि वो भी कमोडिटीज सेल ऑफ गुड्स होगी, तो कह रहे हैं उस केस के अंदर भी 194 एप्लीकेबल नहीं होगा. यानी अगर आप कमोडिटीज एक्सचेंज के थ्रू गुड्स खरीद रहे हैं तो उस केस के अंदर भी आपको 194 एप्लीकेबल नहीं होगा. सिमिलरली उन्होंने ये कहा कि जो मेरा ये ट्रांजैक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूअल सर्टिफिकेट, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स जो कि मेरे सीईआरसी के अंदर एक्सचेंज जो है उस पर रजिस्टर्ड होंगे, उस पर ट्रांजैक्शन होगी, उसके ऊपर भी 194 एप्लीकेबल नहीं होगा. Any question on TDS? Then we'll go to TCS. कोई क्वेश्चन इस TDS के ऊपर? So let us go to TCS. और इस वक्त सही बताऊं तो लोगों को ये जो TCS वाला प्रोविजन है उसमें ज्यादा दिलचस्पी है. हमको ये लगता है 194 एप्लीकेबल हमारे को शायद ना हो या हमारे एसएससी को ना हो, बट मेरे हिसाब से ये 194 और ओ दोनों समझना इसलिए जरूरी था क्योंकि आने वाले टाइम में आप देखेंगे धीरे धीरे हर एक के पास एक दो क्वेरीज आनी चालू हो जाएंगी और 194 ओ की तो एक दो होंगी, 194 एन की हो सकता है ज्यादा आ जाए. तो आई शुड बी वेरी मच अवेयर ऑफ इट. ये
दो सेक्शन में चेंज आया, दो नए सेक्शन इंसर्ट हुए, 206C 1G एंड 1H, और 1G के दो पार्ट है, ए और बी, और H एक ही है, और ये इफेक्ट वही 1 अक्टूबर 2020 से। ए के अंदर ये है कि अगर मैं कोई भी एलआरएस के अंदर पैसे बाहर भेजता हूं तो ऑथराइज डीलर 7 लाख से ऊपर वाले में टीसीएस कलेक्ट करेगा 5%। कब करेगा? डेबिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, राइट। और अगर मैंने वो एजुकेशन लोन लेके पैसा बाहर दिया है तो ये 5% की जगह 0.5% हो जाएगा, लेकिन होगा 7 लाख रुपए से ऊपर। इसको हम एक बार स्लाइड में दोबारा आगे पढ़ेंगे। फिर मान लीजिए मैं इंडिया से बाहर टूर पे जाता हूं और मैं ओवरसीज टूर पैकेज खरीदता हूं किसी टूर ऑपरेटर से, तो वो जो है सेलर एट द टाइम ऑफ डेबिट इन द बुक्स और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट 5% टीसीएस मेरे से कलेक्ट करेगा। और तीसरा, जिसके अंदर के हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स एप्लीकेबल हैं, सेल ऑफ एनी गुड्स टू द बायर के केस के अंदर सेलर का 10 टर्नओवर का 10 करोड़ क्रॉस कर रहा है पिछले साल में, तो एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, एक्सेप्ट इन केस ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स और दूसरे एग्जेम्पशंस भी हैं, 50 लाख से ऊपर की कंसिडरेशन आएगी तो 0.1% टीसीएस कलेक्ट होगा। इन तीनों सेक्शंस को अपन एक एक करके देखते हैं। पहला 12060 1GA। अब यहां से क्या है, 1 अक्टूबर से है तीनों सेक्शन। ये आपके किसी एसएससी ने, जो कि इंडिविजुअल है, पैसे इंडिया से बाहर भेजे, एलआरएस लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम सबको पता है, $2.5 लाख तक भेज सकते हैं। $2.5 लाख US डॉलर्स यूएसडी में आप बाहर भेज सकते हैं 1 साल के अंदर पर पर्सन। लेकिन जहां पर वो 7 लाख रुपए एक्सीड करेगा तो एक्सीडिंग अमाउंट के ऊपर, अदर देन टूर पैकेज के ऊपर, आपका ऑथराइज्ड डीलर आपसे 5% एक्स्ट्रा कलेक्ट करके जमा कराएगा। ही विल कलेक्ट 5% at the time of debit in the books of accounts or receipt of payment, ठीक है ना। अब यहां पर जो ये बात आती है कि होगा क्या, अखबारों में ना ये अखबारों में इसमें नहीं, इसके अंदर जो मैं एलआरएस के अंदर पैकेज बाहर भेजूंगा उसके अंदर है, इसमें उन्होंने ये कहा है कि साथ साथ कि अगर मेरा अमाउंट रेमिट हो रहा है फ्रॉम ए लोन ऑब्टेन, क्योंकि कहते हैं मैंने तो बच्चा बाहर पढ़ता है तो बच्चे के लिए मैंने एजुकेशन लोन लिया 80E वाला, तो कह रहे चलो उस केस में 5% नहीं 0.5% कलेक्ट करके भेज दो। इसमें इश्यूज ज्यादा नहीं है, इश्यूज सिर्फ ये है कि मान लीजिए अगर बच्चे ने लोन लिया और बच्चा अपने आप को रेमिट बाहर कर रहा है, लोन लिया तो 0.5% 0.5% टीसीएस कलेक्ट होगा, तो 0.5% को रिफंड लेने के लिए उसको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी, हो सकता है कोई इनकम ना हो, या फिर उसके पेरेंट्स ने दिया, उसने 0.5% लोन लेके दिया या अपने आप पैसा भेजा, 5% का अमाउंट या तो अपना फिर वो एडवांस टैक्स उसके हिसाब से एडजस्ट करे, क्योंकि बच्चे को बाहर पढ़ने भेज रहे हैं तो 7 लाख रुपए से ऊपर बाहर रेमिट कर रहे हैं तो इनकम इतनी तो होगी कि वो, या हो सकता है कि हमारे जो किसान भाई हैं उनको एग्जेम्पशन नहीं है, वो पैसा बाहर भेजेंगे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए या अपने बाहर रिलेटिव्स को कोई मेंटेनेंस के लिए, 7 लाख रुपए से ऊपर किसी भी चीज के लिए गिफ्ट दिया आपने एलआरएस के अंदर, एलआरएस वाली स्कीम में, बाकी किसी में नहीं है, तो 5% एक्स्ट्रा कलेक्ट करके आपको ऑथराइज्ड डीलर उसकी रिटर्न फाइल करेगा। नाउ दूसरा है मेरा ओवरसीज टूर पैकेज। ये ओवरसीज टूर पैकेज की अगर मैं बात करूं, ओवरसीज टूर पैकेज में मेरे को पता तो चलेगा नहीं, ओवरसीज टूर पैकेज में उन्होंने क्या कहा है कि अगेन 5% कलेक्ट करेंगे एट द टाइम ऑफ डेबिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। होगा क्या, अखबारों में अब जैसे जैसे कोविड खत्म होगा 2-1 महीने में खत्म भी हो जाएगा, तो आएगा वापस इंटरनेशनल टूर्स, दुबई, सिंगापुर, थाईलैंड, बैंकॉक, नेपाल, कहीं का भी आ सकता है, तो वहां का आएगा कि भाई 25,000 रुपए पर पर्सन। तो हमारे जो किसान भाई हैं जो कि इनकम टैक्स नहीं देते, वो कहते हैं चलो भाई दुबई का एक्सपो लग रहा है अगले साल,
दुबई के एक्सपो में जाते हैं, कहते हैं भाई 50,000 रुपए 2 जने के, 3 दिन 4 रात की टिकट है, खाना पीना सब कुछ उसमें इंक्लूडेड। तो उन्होंने पैकेज लिया। जब वो ऑथराइज ये ओवरसीज टूर पैकेज वाले के पास जाएंगे, वो कहेगा जी ठीक है, आपने डी पॉल के पास गए, उसने कहा ठीक है जी, आपने तो ऐड दिया था 50,000 25,000 रुपए पर पर्सन, आना जाना खाना पीना सब कुछ इंक्लूडेड। कहता बिल्कुल ठीक बात है। कहता 50,000 के साथ 2,500 रुपए और दे दो। कहता 2,500 रुपए किस बात के? कहते सरकार का टैक्स है। कहता सरकार का टैक्स है तो उसका वो रसीद वसीद कुछ दोगे? कहता हाँ जी चलान देंगे। तो उसको पता नहीं होगा, लेकिन वो टैक्स के नेट में आ जाएगा। तो ये जो मेरा LRS के थ्रू पैसा बाहर भेज रहे हैं, ये जो ओवरसीज टूर पैकेज के लिए बाहर भेज रहे हैं, यहाँ पे कोई अमाउंट की लिमिट नहीं। मेरे नंबर ऑफ असेसीज बढ़ेंगे। आप अपने क्लाइंट को बता देना बाहर जा रहे हैं, गए हैं, तो उसका TCS कलेक्ट हुआ होगा अगर टूर पैकेज लिया है तो। अभी टूर पैकेज क्या है? टूर पैकेज को उन्होंने डिफाइन किया, any tour package which offers visit to any countries, territories outside India and includes expenses for travel or hotel or stay or a boarding or lodging or any other expenditure। अब क्वेश्चन सिर्फ ये आता है, सिर्फ मैंने टिकट ली किसी से, सिर्फ मैंने होटल की बुकिंग के लिए तो लगेगा कि नहीं लगेगा? मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यहां पर इट हैज टू बी अ पैकेज। अगर वो पैकेज नहीं है तो ये इसमें कवर नहीं होगा मेरे हिसाब से, राइट। एंड जो आपका क्लाइंट अगर ये टूर पैकेज बेचता है तो वो पैकेज के ऊपर, जैसे मान लीजिए अब आप जाते हो क्लियर ट्रिप, मेक माई ट्रिप, तो वहां पर वो कहते हैं होटल प्लस ट्रैवल, होटल प्लस ट्रैवल। इंडिया के बाहर वाले, इंडिया के अंदर तो नहीं एप्लीकेबल, बाहर वाले में एप्लीकेबल, हाँ एप्लीकेबल हो जाएगा। सो यस, वन हैज टू बी केयरफुल अबाउट दिस। जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपने क्लाइंटों को बतानी है, क्योंकि क्लाइंट ये कहते हैं कि भाई ये सब हमारे को कुछ नहीं है, कहां से पता लगेगा? रिटर्न जो मेरे को TCS की भरनी है और जो कि मैं 34B के अंदर, जो कि मैं 34B के अंदर सर्टिफाई भी करता हूं, मैं 34B में सर्टिफाई करता हूं ना, मेरे को 34B में ये सर्टिफाई करना पड़ता है कि जो TCS की रिटर्न्स गई हैं उसमें जो जो पर्टिकुलर जाने थे वो गए हैं कि नहीं गए, जो जाने थे वो गए हैं कि नहीं गए हैं, तो मेरे को ये सर्टिफाई करना पड़ता है। अब ये मेरे को रिटर्न में उन्होंने ऐड किया कि जिस पर TCS कलेक्ट नहीं हुआ ड्यू टू दिस फॉलोइंग, उसकी डिटेल भी TCS की रिटर्न में जानी है। तो क्लाइंट को ये बता देना कि ये डिटेल जाएगी। और जब अगर आप ऐसे पर्सन्स का ऑडिट कर रहे हैं जिसको ये ड्यूटी थी TCS कलेक्ट करने की, चेक करना कि ये डिटेल्स रिटर्न में है कि नहीं, वरना 34B में मेरी रिपोर्टिंग इनकरेक्ट हो जाएगी कि TCS जिस पे नहीं काटा उसकी भी किस किस चीज की डिटेल देनी है। पहला, जो बैंकर है, ऑथराइज डीलर, जिसने पैसा बाहर भेजा, 7 लाख से ऊपर पे तो TCS कलेक्ट करेगा, 7 लाख से नीचे वाला रिटर्न में डालेगा। तो यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपया भी बाहर भेजा तो वो इनकम टैक्स के नॉलेज में आ जाएगा। ये आपने क्लाइंटों को बताना है, क्योंकि बैंकर ये कहेगा कि अगर मेरा कि अगर मैं, वो कहता जी मैं 3 बैंक से डिफरेंट भेज दिया, तो वो तीनों बैंक जो होंगे वो 5-5 लाख भी उसने भेजे या 2-2 लाख भी भेजे या 1 लाख भी भेजा, तो उसको अपने रिटर्न में डालना पड़ेगा ही। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बोलो सर, बोलो सर। हाँ जी, कोई क्वेश्चन? एक क्वेरी है, क्वेरी ऑन सेक्शन 194M जॉइंट प्रॉपर्टी केस। आपका क्वेश्चन बताओ रविंद्र जी, क्या है जॉइंट प्रॉपर्टी केस? मोहित जिंदल जी का क्वेश्चन है, if you have received amount as an advance but that has been returned back after some time, what will be the TCS implication? TCS पे तो अभी गुड्स वाले पे आता हूँ, अभी आया नहीं, उस पे आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ये 194M के अंदर आपका जॉइंट प्रॉपर्टी का क्या केस है सर? जॉइंट प्रॉपर्टी केस के अंदर आपको जो
रेंट के ऊपर टीडीएस कटना है ना? रेंट रेंट है या कौन सा है ये? सर ये कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट है सर। अच्छा 50 लाख से ऊपर। जी जी सर। हाँ जी, उसके अंदर क्या आपको सर प्रॉपर्टी इन ज्वाइंट नेम 3% आर इन्वॉल्व, राइट राइट सर। टोटल पेमेंट टू बी मेड 90 लाख। वेदर टीडीएस इज एप्लीकेबल और नॉट सर। बट मैंने बहुत सारे आर्टिकल पढ़े हैं तो कोई कह रहा है कि होगा, कोई कहता है कि नहीं होगा सर। थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें सर। एक पर्सन कितने की पेमेंट कर रहा है? सर 30 लाख की सर। तो वो जो पर्सन पेमेंट कर रहा है वो तो 50 लाख की कर नहीं रहा। जी जी सर। तो पर्सन के ऊपर है ना ये तो। सर आई एग्री, बट मैंने आर्टिकल पढ़े ना सर, उसमें बहुतों ने ओपिनियन अलग अलग दी है सर, हाँ तो इसलिए कंफ्यूजन था सर। एक बार इसके बाद अपन वो सेक्शन निकाल लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, एक बार उसको क्लियर कर लेते हैं क्या दिक्कत है, क्योंकि इट वुड बी प्योरली डिपेंडिंग अपॉन द लैंग्वेज ऑफ द सेक्शन। जी जी। ये टीसीएस वाला क्वेश्चन अपन ले लेते हैं अभी, एक सेकंड जस्ट। ये पर्सन के ऊपर ही है। अगर उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट दिया 30 लाख रुपए का, जी जी सर, तो वो 50 लाख से ऊपर का नहीं है, तो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सर एग्रीमेंट अलग अलग बनाने पड़ेंगे, एक ही एग्रीमेंट में अलग तीनों ही कर देंगे? अलग 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 ओके सर। अलग अलग। बट वो फैमिली मेंबर है सर तीनों ही, उससे क्या हुआ? उससे कोई कुछ नहीं होगा। अलग अलग इमोल प्रॉपर्टी में डिफरेंट होता है। इमोल जी। प्रॉपर्टी में क्या होता है, इमोल प्रॉपर्टी में उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख क्रॉस करेगी, जी जी। तब मेरे अगर 3 भी बायर है तो तीनों को काटना पड़ेगा। मान लीजिए वो ओके। 60 लाख की है और जी जी। तीनों ने 20-20 लाख दिया, तो तब भी तीनों को काटना पड़ेगा। राइट सर। वो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जी जी। प्रॉपर्टी की वैल्यू। यहाँ पे मैंने जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट उसको दिया है, तो मेरा वो एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है, ओके। वो 50 लाख का। राइट। सिंपल एग्जांपल है, मान लीजिए एक इमोल प्रॉपर्टी आपने किराए पे ली है ना, और किराया आप 3 लोग मिलके 2-2 लाख रुपए दे रहे हो, 2 लाख रुपए पर मंथ, 2 लाख रुपए पर मंथ, 2 लाख रुपए पर मंथ, और सॉरी पर ईयर सॉरी, तो पर मंथ तो भूल गया मैं। सो 2,40,000 रुपए टीडीएस आज की डेट में। प्रॉपर्टी चाहे एक है जी। तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा, वो पर पर्सन के ऊपर डिडक्शन की बात है। और इमोल प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी बेस्ड है, यहाँ पर पर्सन बेस्ड है। जी जी। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। तो एक तो ये ध्यान रखेंगे कि भाई अगर 7 लाख से नीचे जा रहा है तो उसकी भी डिटेल जा रही है। जो मेरा अथॉराइज डीलर ने टीसीएस जो कलेक्ट किया था सेलर ने किसी और सेक्शन में, उसकी वजह से इसमें टीसीएस कलेक्ट नहीं किया, तो वो डिटेल भी यहां पर जाएगी। या किसी ट्रांजैक्शन पे टीडीएस डिडक्ट हो गया, इस वजह से इसके अंदर टीसीएस नहीं है, तो वो भी डिटेल यहां पर जाएगी इन रीजन से अगर कुछ होगी। या मैंने टीसीएस कलेक्ट नहीं किया क्योंकि जो मैंने सर्विस प्रोवाइड की, जो मैंने पेमेंट करवाई, जो मेरा ऑथराइज, जो मेरा ये ओवरसीज टूर पैकेज था, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एक्सेट्रा जिनको एग्जेम्प्ट है ना, उसका है, तो उसकी भी डिटेल जाएगी। उनका टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा पर उसकी डिटेल जाएगी, और एग्जाम्प्ट अंडर नोटिफिकेशन ये डिटेल जाएगी, राइट। ये क्वेश्चन का अभी आंसर है नहीं, क्योंकि ये मान लीजिए एक टूर ऑपरेटर दुबई बैठा, उसने एक टूर ऑपरेशन दुबई का बेचा और इंडिया वाले ने उसकी पेमेंट की, तो क्या वो दुबई वाला इंडिया वाले से टीसीएस कलेक्ट करेगा? अब उसको तो इंडियन लॉज एप्लीकेबल है नहीं, बट इस सेक्शन के हिसाब से एप्लीकेबल है, तो इसका भी आंसर नहीं है। उसको इन्फोर्स भी कैसे करेगी गवर्नमेंट? आई एम वेरी डाउट, वो नहीं कर पाएगी इन्फोर्स, राइट। ठीक है जी।
अब आ जाते हैं हमारे जो सभी के माइंड के अंदर पॉइंट है 206C1H TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स। ये सेक्शन सबको पता है, लेकिन पता होने के बावजूद भी शायद कुछ बड़ी एंटिटीज ने डिफरेंट मोड चालू किया, क्योंकि इसमें बेसिकली लॉ सबको पता है, लेकिन हम फिर भी अभी डिस्कस करेंगे। बेसिक क्वेश्चन जो सबका है कि वो बिल में चार्ज करें या डेबिट नोट करें, ठीक है। अब हम जो लॉ पढ़ेंगे वो लॉ इसी एंगल से पढ़ने हैं, क्योंकि एक व्यू तो देखो ये बनता है कि भाई बिल में नहीं करना चाहिए पर कर रहे हैं, और सारी बड़ी कंपनियां कर रही हैं। एक कहते हैं जी भाई डेबिट नोट में करेंगे तो कंप्लायंसेस मेरी ज्यादा पड़ जाएगी। बट अब अगर हम बिल में कर रही हैं जो पार्टियां, तो उसमें क्या क्या इश्यूज आएंगी और वो लॉ के हिसाब से क्या है, एक बार उसको अपन देखते हैं, फिर आप डिसाइड कीजिएगा क्या लॉ है। सबसे पहले तो ये किसको एप्लीकेबल है, पहला क्वेश्चन ये आता है कि आपके सारे एसएससीज को एप्लीकेबल नहीं है। ये उस एसएससी को एप्लीकेबल है जो कि सेलर है और उसका पिछले साल में, इमीडिएटली पिछले साल में टर्नओवर 10 करोड़ क्रॉस किया। और यहां पर जो टर्नओवर है, दिस इज बोथ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी आपका एसएससी पार्टनरशिप है, प्रोप्राइटरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एलएलपी है, उसका पिछले साल टर्नओवर 10 करोड़ क्रॉस करना चाहिए। और ये 10 करोड़ का मतलब है कि इट इज एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। यानी कि अगर मेरी टर्नओवर 9.5 करोड़ है और जीएसटी मेरा 1 करोड़ है, तो मेरा टर्नओवर इज 9.5 करोड़। GST is not to be included for the purpose of arriving at turnover, which is similar to my tax audit. To arrive at this turnover, GST is not my turnover. My turnover is only this, right? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, इसको मैं स्टार्टिंग में इसलिए आंसर कर रहा हूँ। और यहाँ पर मेरा टर्नओवर हैज टू बी बोथ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कंसिडर द एप्लीकेबिलिटी, भाई किस किस को एप्लीकेबल है। और आगे कहाँ है कि जब मेरा टीसीएस होना है ऑन सेल कंसिडरेशन ऑफ एनी गुड्स एक्सीडिंग 50 लाख रुपीस इन प्रीवियस ईयर एट द रेट ऑफ 0.1%। अब सबका ये कहना कि यस इट इज 0.75%, 0.075%। ये लेकिन है 14 मई से 31 मार्च तक की। एक्चुअल रेट तो यही है 0.1%। ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊं, 31 मार्च के बाद और मैं 0.75% ही कलेक्ट करता रहूं। इसलिए हम बात करते हैं 0.1% की। अभी कंसेशन दे रखा है 25% का, वो बात अलग है। और ये है कब, सेक्शन कहता है, हमने अभी 2 सेक्शन देखे, उन दोनों सेक्शन में था एट द टाइम ऑफ डेबिट और रिसिप्ट व्हिचएवर इज अर्लियर। एट द टाइम ऑफ डेबिट और रिसिप्ट व्हिचएवर इज अर्लियर। यहां पर क्या है, ऑन द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ सेल कंसिडरेशन। सेक्शन ये कहता है इट इज नॉट एट द टाइम ऑफ डेबिट। एट द टाइम ऑफ डेबिट कब होता है, जब मैं इनवॉइस रेज करता हूं, दैट इज एट द टाइम ऑफ डेबिट ना, जब मैं इनवॉइस रेज कर रहा हूं। बट सेक्शन कहता है इट हैज टू बी कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ सेल कंसिडरेशन। बट इफ आई हैव चार्ज्ड इन इनवॉइस, देन आई हैव चार्ज्ड एट द टाइम ऑफ डेबिट itself, and then it is payable by the 7th of next month. मेरा एक सेक्शन जैसे 206AA है, वैसे टीसीएस में 206CC, जहां पे वो कहता है 5% डबल द रेट और 5%। इसमें ना उन्होंने डबल किया ना 5% किया, सीधा उन्होंने कहा 1%। अगर आपका टीसीएस नहीं है, अगर आपका पास पैन आधार नहीं है तो। एक्सेप्शंस क्या क्या है, ये कि ये सेक्शन किस किस को एप्लीकेबल नहीं है, कौन कौन से ट्रांजैक्शंस पे कलेक्ट नहीं होगा। अगर आपका टीसीएस कलेक्ट हो गया 206C1 के अंदर, यानी कि वो टिम्बर, एल्कोहल, स्क्रैप, इसके ऊपर इस सेक्शन के अंदर कलेक्ट होना, इस सेक्शन में नहीं होना। और ये जो स्क्रैप है, वो स्क्रैप में ना मैकेनिकल स्क्रैप है जो कि मैन्युफैक्चरिंग में निकल के आता है, दूसरा स्क्रैप नहीं। देन मेरा 206C1F मोटर कार में मुझे पता है 10 लाख से ऊपर का अगर मेरी सेल होती है मोटर कार की, उसके ऊपर टीसीएस कलेक्ट होता है। 10 लाख से नीचे नहीं होता। इसमें एक एग्जम्पशन दी थी, वो कह रहे थे भाई 10 लाख से ऊपर का अगर मान लीजिए डीलर को सेल होती है, अब डीलर को सेल मैन्युफैक्चरर डीलर को कर सकता है और डीलर टू डीलर हो सकता है। भाई मैन्युफैक्चरर ने दिया डीलर को
तो मैन्युफैक्चरर ने डीलर को सेल की, और कई बार एक डीलर के पास होता है, दूसरे डीलर के पास मटेरियल नहीं होता, तो यहाँ से इंटरसेल गुड्स कर देते हैं। वो कहता है अगर डीलर को सेल की है तो टीसीएस 2060-1F में नहीं होगा, ये इसमें एक्सेप्शन है। जैसे स्क्रैप में एक्सेप्शन है कि अगर मैन्युफैक्चरर अपना एक सर्टिफिकेट दे दे तो उस केस के अंदर कि भैया मैन्युफैक्चरिंग में यूज होगा तो उसके ऊपर टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। ऐसे मोटर कार के अंदर ये स्पेसिफिक एग्जेम्पशन है, राइट। फिर अगर मेरा टीसीएस कलेक्ट हो रहा है, कोई कहता है टीसीएस अगर यहाँ कलेक्ट हो गया, अगर यहाँ कलेक्ट हो गया, और मेरा अगर यहाँ और यहाँ पर मेरा अगर ये तरह की मेरी नेचर है कि एलआरएस के अंदर, ये ओवरसीज टूर पैकेज के अंदर मेरा टीसीएस कलेक्ट हो गया, तो इस सेक्शन में नहीं होगा। इस सेक्शन में है किस पे ऊपर, कंसिडरेशन ऑफ एनी गुड्स, सेल कंसिडरेशन ऑफ गुड्स। ये एलआरएस क्या मैं पेमेंट गुड्स के लिए कर सकता हूँ? हो सकता कर सकता हूँ। मेरे को किसी ने ज्वेलरी मेरे जानकार ने दी और मैं एलआरएस के अंदर उसकी पेमेंट कर दूं, तो नो टीसीएस हेयर। मेरा ओवरसीज टूर पैकेज में अंदर कोई गुड्स हो साथ में कि आपको ये खाना देंगे, जो भी आई डोंट नो, जो भी उनके माइंड में है, तो अगर इस सेक्शन में टीसीएस कलेक्ट हो गया तो इस सेक्शन में नहीं होगा। प्लस मेरा एक्सपोर्ट्स, यानी कि अगर मैं इंडिया से बाहर कोई गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो उसका अगर कंसिडरेशन मेरे को आएगा तो उस केस के अंदर मेरा कोई भी टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा, उसमें मेरे को उससे कलेक्ट नहीं करना है। प्लस फर्दर अगर मेरा बायर, आपके एसएससी का बायर इस सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एनी एम्बेसी, एनी हाई कमीशन, लेगेशन, कमीशन, कंसुलेट एंड ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेन स्टेट, उस केस में टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। या फिर वो कोई लोकल अथॉरिटी जो 1020 में है वो नहीं होगा, या फिर कोई पर्सन है विच इज इंपोर्टिंग गुड्स इनटू इंडिया। मेरा बायर इज अ पर्सन इंपोर्टिंग गुड्स इनटू इंडिया। अब ये कैसे होगा? I am selling to a person who is importing goods into India of my goods only ना। अब ये कैसे होगा? मान लीजिए कि आपकी ये कंपनी है PQR लिमिटेड, ये गुड्स बेचती है सर्टेन पर्सन्स को इंडिया में, इंडिया के अंदर, और ये करती है इंपोर्ट इंडिया से बाहर। अब PQR ने क्या किया? एक SEZ में यूनिट डाला। SEZ यूनिट इज टोल्ड टू बी आउटसाइड इंडिया। अब PQR ने जब इनको गुड्स बेचा तो वो SEZ से बिलिंग की, इसने यहाँ पे इंपोर्ट किया, यहाँ से की, तो ये सारे के सारे इंपोर्टर हो गए। तो PQR ने जब ये वाले गुड्स की सेल की तो इस केस के अंदर देयर वुड बी, मेरी तो सेल हो रही है बट बायर कौन है? इंपोर्टर ऑफ माय गुड्स। तो उस केस के अंदर टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। अब इसके जो इश्यूज हैं, पहला, ये गुड्स क्या है कहीं डिफाइंड नहीं है, तो मैं गुड्स किसको लूं? क्वेश्चंस हैं, क्या शेयर्स गुड्स हैं, क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स हैं? अच्छा एक बात बताइए, क्या इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स हैं? आपका क्या आंसर है? क्या ये मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचूंगा तो उसके ऊपर क्या टीसीएस कलेक्ट हो जाएगा? इज दिस इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स? मान लीजिए उस पे टीडीएस नहीं है, मैं बना बनाया बेच रहा हूं, मोहित जी मैं बना बनाया बेच रहा हूं, फिर लेकिन उस पे जीएसटी तो है। मेरे हिसाब से दिस इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट गुड्स। हाँ, उस पे जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, सर्विस एक्टिविटी है उसके ऊपर है, उसके ऊपर है, बिकॉज दैट इज अ सर्विस। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सर्विस, इमूवेबल प्रॉपर्टी पर से इज नॉट अ सर्विस, राइट? Similarly, the question would arise on securities. 194 IA ऑलरेडी, लेकिन वैसे भी वो सर्विस है। तो और 194 IA है 50 लाख से ऊपर की, अगर मैं बात करूं तो 50 लाख से नीचे होगी तो एक ही जने को मैंने 10 यूनिट बेच दिए तो वहां तो पर प्रॉपर्टी की बात होती है ना। 194 आई में तो 50 लाख से ऊपर की इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, तो मेरे पास 25 लाख की 10 है प्रॉपर्टी, फिर तो टीडीएस एप्लीकेबल नहीं हुआ।
तो क्या इस पे टीसीएस कलेक्ट हो जाएगा? तो पर से आई हैव टू अज्यूम कि भैया इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर टीसीएस है कि नहीं है। मेरे हिसाब से इट इज नॉट सेल ऑफ गुड्स, इट इज नॉट सेल ऑफ गुड्स। हाई सी सेल केसेस के अंदर आप बात कर रहे हैं अधिराज जी, हाई सी सेल के अंदर ऑफ कोर्स जब कंसिडरेशन आएगा इट इज सेल ऑफ गुड्स, इट इज सेल ऑफ गुड्स, टीसीएस वुड बी एप्लीकेबल, टीसीएस वुड बी एप्लीकेबल, राइट? तो गुड्स को डिफाइन नहीं किया, बट यस देन आई हैव टू टेक इट फ्रॉम माय गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी एक्ट, मोस्ट नियरली वही है। नहीं तो फिर मैं गुड्स लूंगा अपना सेल्स ऑफ गुड एक्ट से, नहीं तो फिर जनरल क्लॉजेज एक्ट से। बट यस मेरे हिसाब से तो इमूवेबल प्रॉपर्टी, शेयर्स, ये सब नहीं होने चाहिए। शेयर्स के ऊपर भी मैं कहूं तो शेयर्स के ऊपर जीएसटी नहीं है, शेयर्स के ऊपर जो ब्रोकरेज लगती है उसके ऊपर जीएसटी, राइट? नाउ अनदर क्वेश्चन, ये मेन क्वेश्चन ये है, चार्जिंग ऑन बिल और एट द टाइम ऑफ कलेक्शन थ्रू डेबिट नोट। होना चाहिए चार्जिंग थ्रू डेबिट नोट। अब ये चार्जिंग ऑन बिल से क्या क्या इश्यूज आएंगे अपने आगे अभी देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ऑफकोर्स ये आता है कि इट हैज टू बी जीएसटी के ऊपर भी टीसीएस कलेक्ट होगा क्या? मेरा 1 करोड़ रुपए का मेरा इनवॉइस है और जीएसटी मेरा 18 लाख है और मेरे को 118 लाख रुपए की पेमेंट आती है, तो टीसीएस में 100 लाख पे काटूंगा 118 पे? क्लियरली 118 के ऊपर it would be inclusive of GST. My total consideration for sale of goods is 118 lakhs. So I have to charge on the GST also. मेरे को collect करना है GST के ऊपर, not charge. I have to collect on the total sale consideration which I am receiving. अब एक क्वेश्चन ये बड़ा अच्छा आया, वो कहते हैं कि मेरे तो 5-6 ब्रांचेस हैं और मैं मैन्युफैक्चर करके कभी किसी ब्रांच में बेच देता हूँ, कभी किसी ब्रांच में। अब जीएसटी में तो वो सेल है। अब मैं अगर अपनी बिलिंग में चार्ज कर रहा हूं तो सॉफ्टवेयर में डाल दिया तो उसके अंदर या मैं क्या करूंगा कि ब्रांचेस को अलग कर दूंगा, ब्रांच से अलग ब्रांच में गया तो अलग करूंगा, कैसे करूंगा? और एप्लीकेबल है? मेरे ख्याल से एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे को उसका कोई सेल कंसिडरेशन नहीं आना। आई कैन नॉट मेक सेल टू माई सेल्फ, दो अंडर जीएसटी एक्ट इज इट इज अ सेल, आई एग्री, बट आई विल नॉट रिसीव एनी कंसिडरेशन फॉर द सेम, नो अमाउंट वुड बी रिसीव्ड बाय मी, so no GST, no TCS on this. ये क्वेश्चंस आए हैं सामने। नेक्स्ट, अब मान लीजिए कि मेरे को 40 लाख आया बिफोर सितंबर और 20 लाख आया इन अक्टूबर, तो टीसीएस मेरे को कितने पे कलेक्ट करना है इसमें? सितंबर से पहले आया 40 लाख और अक्टूबर के अंदर आया 20 लाख, तो टीसीएस कितने पे होगा? मोहित जिंदल जी, एफएक्यू कहाँ आए? एफएक्यू क्या सीबीडीटी ने इशू किया कोई? मेरे ख्याल से सीबीडीटी का तो कोई एफएक्यू नजर नहीं आया मेरे को, अगर है तो प्लीज शेयर कीजिएगा। 10 लाख, रविंद्र जी का, हिमांशु जी का, सबका यही कहना है 10 लाख। यस यस, आंसर है बिल्कुल राइट। मेरे को अप्रैल से देखना है, शुरू से देखना है। शुरू का 40 लाख क्रॉस हो गया, यहाँ 10 लाख 50 लाख हुआ, फिर 10 लाख के ऊपर। तो यस, दिस कंसेप्ट इज क्लियर। अब सेल्स इफेक्टिव आफ्टर 1 अक्टूबर 20 और रिसिप्ट्स आफ्टर 1 अक्टूबर 20। मान लीजिए मेरे डेटर्स खड़े हैं 2017-18 के 2 करोड़ के, मेरे को सितंबर तक कुछ नहीं आया, सारा का सारा अक्टूबर में आ गया, तो क्या इसके ऊपर टीसीएस होगा? क्या इसके ऊपर टीसीएस कलेक्ट करना है? मेरी सेल ही 2017-18 के सेट मेरे डेटर्स हैं, तो इस क्वेश्चन के ऊपर मेरा टीसीएस किसी का व्यू? रविंदर जी का भी कहना है यस। Yes, because collection is to be considered irrelevant of sale date. विपिन जी का कहना है बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब जो ये कई लोगों का कहना है कि भाई हम तो इनवॉइस के ऊपर ही करेंगे। अब वो कह रहे हैं जी मेरे जो डेटर खड़े थे ना, मैंने उसके ऊपर भी कलेक्ट कर लिया। अब मान लीजिए ये 2 करोड़ के डेटर्स में से मेरे 50 लाख को मैंने बैड डेट राइट ऑफ कर दिया, बैड डेट।
तो इसके ऊपर भी मैं टीसीएस कलेक्ट करके दे दूंगा। बैड डेट मेरा अगले साल में हुआ 2021 में, फिर सो इट शुड नॉट बी, क्योंकि जो बिलिंग में करना चाह रहे हैं वो कह रहे हैं जो मेरे को 31 सितंबर में डेटर्स कर रहे थे उन सबके ऊपर मैं टीसीएस कलेक्ट करके जमा करा देता हूँ। सो दैट इज नॉट द करेक्ट वे। और अगर मैं बिलिंग में कर रहा हूं तो बिलिंग मैंने किया, बाद में मैंने उसमें डिस्काउंट दिया, क्रेडिट नोट दिया, कोई डेबिट नोट आया, सेल रिटर्न हो गई, तब क्या करूंगा? That's why CBDT has very wisely put it, in spite that how it would be done, there would be practical issues because कई जो हमारे अकाउंटेंट है वो 2-3 महीने में बैंक रिकंसाइल करते हैं, या फिर ऐसा भी होता है कि रामलाल का पैसा श्यामलाल में डाल दिया तो वो रिकंसिलेशन क्या गलत टीसीएस वाला, ठीक है, रिटर्न रिवाइज करते रहो, वो बात अलग है। सो सस्पेंस पे खड़े रहती हैं एंट्रीज। So these all issues would be there practically, but yes, ये अगर मेरा मान लीजिए मैंने गुड्स बेची और गुड्स बेच के मैंने बिलिंग के अंदर चार्ज कर लिया और सेल रिटर्न हो गया, मैंने कोई उसको क्रेडिट नोट दे दिया, फिर कोई डिस्काउंट दिया बाद में, फिर hence it is kept on collection only। ये एक क्वेश्चन था, एडवांस सेल कंसिडरेशन रिसीव्ड बिफोर 1 अक्टूबर 20 एंड सेल्स मेड देयरआफ्टर, या फिर आप बाद में आपने ये एडवांस को रिवर्स ही कर दिया, वापस दे दिया, दोनों कंडीशन हो सकती है। अब जब मैंने एडवांस लिया, जो बिलिंग में चार्ज कर रहे हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा ये, क्योंकि जब मैंने एडवांस लिया मेरे को तभी कलेक्ट करना है, और जैसे मैं प्रॉपर्टी रिमूवल में लेता हूँ एट द टाइम ऑफ एडवांस ऑल्सो आई हैव टू कलेक्ट, तो यहाँ पर भी एट द टाइम ऑफ एडवांस आई हैव टू कलेक्ट। ये जो बहुत लोग एडवांस फ्रॉम कस्टमर से ले लिया करते हैं, प्लीज अब ध्यान रखिएगा, उसके ऊपर टीसीएस भी साथ साथ कलेक्ट करना है। और चाहे वो पैसा 365 दिन में वापस भी कर दिया आपने, तो वो टीसीएस तो वापस नहीं होगा। आप टीसीएस के लिए दे तो रिफंड के लिए अप्लाई करो, उसको बोलना तो भाई क्रेडिट ले ले, जैसे मैं इमूवल प्रॉपर्टी में करता हूँ, मैंने एडवांस लिया, टीडीएस कट गया और मेरी प्रॉपर्टी हुई नहीं, मेरे को वो पैसा वापस देना पड़ा। तो टीसीएस इज इन दिस केस वुड बी एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट, एडवांस, और अगर मैंने वापस रिवर्ट कर दिया देन इन केस इट द टीसीएस तो एक बार जमा हो गया, राइट? मेरे ख्याल से मोहित जी आपका ये जो क्वेश्चन था स्पेसिफिकली अमाउंट रिसीव्ड एडवांस बट देन रिटर्न बैक आफ्टर सम टाइम, टीसीएस इंप्लीकेशन सेम रहेगा कि उसको ये प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है मोहित जी, राइट? अब जो बिलिंग में करते हैं वो कैसे करेंगे? मान लीजिए किसी ने 100 लाख का माल बेचा और उसी से परचेज कर दिया 70 लाख, तो 30 लाख की पेमेंट आई मेरे पास। अब एज पर दिस सेक्शन नो टीसीएस, मैं बिलिंग में कर रहा हूं तो इसमें भी टीसीएस हो रही है, इसमें भी टीसीएस हो रही है। इन माय व्यू दिस इज नॉट करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ। और यहां पर ऑडिटर जिसने टीसीएस का, मेरे को चैप्टर 17B की कंप्लायंसेस की बात बढ़ती है, वेदर चैप्टर 17B हैज बीन कंप्लाइड विद, जब मैं टैक्स ऑडिट करूंगा नेक्स्ट ईयर, तो जिसने भी इनवॉइसेस में किया वहां पर ऑडिटर को अपना क्वालिफिकेशन डालना पड़ेगा दैट टीसीएस अंडर सेक्शन 2061H हैज नॉट बीन कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट बट एट द टाइम ऑफ डेबिट इटसेल्फ। ऑडिटर को तो अपना फैक्ट देना पड़ेगा, ऑडिटर का कोई चॉइस नहीं, असेसी जो मर्जी करे, ऑडिटर को तो फैक्ट देना पड़ेगा। और उसकी वजह से बहुत सारी कैलकुलेशन मिसकैलकुलेशंस होंगी फॉर व्हिच द असेसी वुड बी रिस्पांसिबल, स्पेशली इन द केस ऑफ दिस डिस्काउंट्स, दिस माय बाइंग सेलिंग, ये एक्स्ट्रा हो रहा है दैट इज फाइन, बट अब ये है जब मैंने कलेक्ट कर लिया, मैंने उसको चार्ज कर लिया, कलेक्ट करने का मतलब मैंने उसको डेबिट नोट दिया या मैंने उसको अपना इनवॉइस में रेज कर दिया, अगले महीने की 7 तारीख तक जमा कराना है मेरे को। सो माय कैश मूवमेंट, अब इसमें एक बात ये भी आती है कि मान लीजिए मेरे पास अक्टूबर के अंदर किसी से 1 करोड़ रुपया आया, अब 1 करोड़ पे मेरे ख्याल से जो टीसीएस बैठेगा आज की डेट में 7,500 रुपए बैठेगा, तो आप जो पार्टी को डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो वो दिस माइनस आप 0.750 99 लाख 9,000 जो भी बैठेगा 7,500 रुपए कम करके फिर उसको आप क्रेडिट कर सकते हो, 7,500 का डेबिट नोट रेज कर सकते हैं।
भैया मैंने ये कलेक्ट कर लिया, ये डेबिट नोट लो और बाकी बैलेंस पेमेंट करो, इतने पैसे भी आपके और आने, ये लो टीसीएस का सर्टिफिकेट। सो होना चाहिए डेबिट नोट के थ्रू, राइट। यस, ये कंडीशन तो है ही कि अगर मान लीजिए देयर इज नो नीड टू कलेक्ट टीसीएस अंडर सेक्शन 2061H इफ बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, कि मेरा किसी सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट होना था और मैंने टीडीएस डिडक्ट कर लिया। अब क्वेश्चन जो इसके अंदर रह गया वो क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने टीसीएस के लिए मैंने टीडीएस सर्टिफिकेट, टीडीएस के लिए नील का सर्टिफिकेट अप्लाई किया, तो टीडीएस लायबल के लिए हाँ है, टीडीएस डिडक्ट किया नहीं, तो क्या 2061H में कट जाएगा? ये क्वेश्चन अनआंसर्ड है अभी भी। और ये हम कहेंगे सेल ऑफ गुड्स के ऊपर टीडीएस कहां कटता है? एक तो हमारा 194O में कटेगा, एक मेरा 194C में कटेगा। 194C में कब करता है? जॉब वर्क में। जॉब वर्क मैंने मटेरियल उसको बेचा, उसने मेरे को बना के वापस बेचा, तो उस पे जॉब वर्क पे टीसीएस कलेक्ट होता है 1% 2%। तो ये कंडीशंस वहां पे रहेगी। अब यहां पर अभी तक किसी का कोई इसमें से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्रिंस जी का है, इफ टीसीएस चार्ज ऑन बिल दैट इज सेल बिल इज 31st March 2021 एंड रिसीव डेट इज 1st April, here TCS would go for in financial year 2021. For 21-22 it is a non-compliance and to be reported in point 34B. प्रिंस जी हाँ आप कह सकते हो, बट ये 34B के अंदर ये नॉन कंप्लायंस कलेक्ट मेरे एक ट्रांजैक्शन पे अगर पिछले साल में हो गया तो मैं शायद इस साल में ना दूं। बट यस आपके पॉइंट में डिस्कशन वाला पॉइंट है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आउटराइट इसको हम कर सकते हैं, बट एक ही ट्रांजैक्शन पे 2 बार टीसीएस, इट्स ऑन रिसिप्ट बेसिस, आई एग्री, बट व्हेन आई हैव कलेक्टेड एट वन टाइम at the I have collected the TCS at the time of for debit itself, then again on receipt basis 2 times नहीं हो सकता, 2 times नहीं हो सकता। अपना बोलेगा रिपोर्टिंग करेगा तो अपने वो 3CB के या 3CA के पैरा 3CB के पैरा 5 और 3CA के पैरा 3 के अंदर क्वालिफिकेशन डालेगा। जो क्लाइंट भी इनवॉइस के ऊपर टीसीएस रेज कर रहा है उसको क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा कि इट इज चार्ज एट द टाइम ऑफ डेबिट एंड नॉट एट द टाइम ऑफ कलेक्शन, तो वो तो करना ही पड़ेगा। ऑर्डर के पास कोई चॉइस नहीं, तो आप क्लाइंट को बता दो जी आपका तो ये क्वालिफिकेशन जाएगा या कैन नॉट हेल्प इट। और कोई क्वेश्चन आप किसी तरह के ट्रांजैक्शन और माइंड में किसी के आ रही हो जिसमें कोई डाउट हो? टीडीएस के रिगार्डिंग है। हाँ बोलो ना सर। Sir, one of my client is in India. He is providing services outside India, just like making the apps, exporting of services outside India. And he has hired many of the engineers outside India. And whether the TDS will be applicable on such payment expenditure made by him outside India, and that engineers are foreigners. All engineers are foreigners, sir. Project भी outside India है? Project is in India. Private Limited is incorporated in India. आपकी कंपनी जो पेमेंट करने वाली है वो इंडिया में है? हाँ जी। आपने पेमेंट किया फॉरेन टेक्निकल पर्सन को? फॉरेन टेक्निकल पर्सन को किया, और जो सर्विसेज दे रहे हैं ना सर वो एप्स बना के वो फॉरेनर्स के लिए ही है, सारी फॉरेनर्स के लिए। फॉरेनर्स के लिए मतलब कैसे? एप्स बनाते हैं वो वहाँ पे दे देते हैं उनको, वहाँ पे ऐप का जो यूज करते हैं वो फॉरेनर से यूज करते हैं, वहाँ पे यूएसए बेस्ड है एप्स। अब वो ऐप को तो वो यूएसए वाला इंडिया में आके भी यूज कर सकता है ना, ये तो ऐप तो कहीं से भी डाउनलोड हो सकता है। यस सर, ऐप तो हो सकता है, लेकिन जो सर्विस है 99% कस्टमर्स उनके यूएस बेस्ड है जो पेमेंट्स आती है। लेकिन दैट प्रोजेक्ट इज एक्चुअली वो मेरा क्लाउड पे है। हाँ क्लाउड पे, यस बिल्कुल क्लाउड पे है, तो क्लाउड के बेस के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि इट इज अ प्रोजेक्ट आउटसाइड इंडिया, इट इज अ प्रोजेक्ट विद इन इंडिया। तो इन दिस केस इट इज अ टेक्निकल सर्विसेज व्हिच यू आर रिसीविंग, सो इन दैट केस आपको टेक्निकल सर्विसेज के हिसाब से ही उसका टीसीएस काटना पड़ेगा, टीडीएस काटना पड़ेगा 195 के अंदर।
195 के अंदर काटना पड़ेगा। हाँ, जो और फॉरेनर्स non को resident। पेमेंट कर रही हो, जो फॉरेनर्स हाँ को जी। पेमेंट कर रही हो। हाँ। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। राजीव सक्सेना जी का सेल परचेज विद सेम पार्टी। मैंने आपको एग्जांपल दिया राजीव जी कि अगर मैंने 100 लाख की सेल की और 70 लाख की परचेज की, मेरे पास पेमेंट कितना आया? मेरे पास जब पेमेंट 50 लाख एक साल में, एक सिंपल सा एग्जांपल लो कि मैंने 100 लाख की, मैंने 70 लाख की सेल की, 40 लाख इस साल आया, 30 साल अगले साल आया, नो टीसीएस। पहले 50 लाख का भी तो मेरे को बेनिफिट मिलता है ना। मैंने इस साल 70 लाख की सेल की, 40 लाख इस साल आया, 30 लाख अगले साल आया, नो टीसीएस। लेकिन बिल में चार्ज करूंगा तो कर लूंगा, विच इज रॉन्ग। और सेल परचेज कर रहा हूं, 100 लाख की सेल की, उससे मैंने 70 लाख की परचेज की, मेरे पास 50 लाख नहीं आया, सिर्फ 30 लाख आया, तो 30 लाख पे टीसीएस है ही नहीं। 50 लाख क्रॉस करेगा तो टीसीएस है। 50 लाख के पहले एग्जम्पशन है। अधिराज जी का, इफ बायर not paying TCS amount against the debit note, what remedy available to sellers? It is their normal commercial transaction. It is normal commercial transaction. ये तो नॉर्मल कमर्शियल ट्रांजैक्शन है। बात ये नहीं है कि वो टीसीएस कलेक्ट कर रहा है, उसका भी तो टीसीएस कलेक्ट हो रहा है, मेरे को उसके हिसाब से उनका एडवांस टैक्स को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। वो तो उनको आपस में बोलो जी, आपको भी देना पड़ेगा, मुझे भी देना पड़ेगा। माल तो वो तो उनका बिजनेस टर्म्स है, गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया तो उनको देना पड़ेगा। वो कल को ये बोले कि भाई मैं तो जीएसटी नहीं देता आपको, ऐसे चलेगा नहीं ना, ऐसे नहीं चलता। ये तो उनको आपस में सेटल करना पड़ेगा। भाई हम कुछ नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट कुछ नहीं कर सकता। बोलो जी ये तो लॉ है, गवर्नमेंट ने लगाया है। एक बात तो हम लोग सब ये समझ लें कि हम कुछ अपनी तरफ से नहीं कर रहे। सारा बर्डन अपने सर पे मत लो कि हमने लॉ बनाया, हमने कोई लॉ नहीं बनाया, ये गवर्नमेंट ने बनाया। ये ऑडिट जो हम करते हैं ये हम गवर्नमेंट के बिहाफ पे करते हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं। तो वी आर रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट, सो व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड वी विल हैव टू डू इट। तो ये तो आपको आपस में सेटल करना। अगर आपको कोई तकलीफ है किसी एसएससी को तो बताओ ना गवर्नमेंट को, यू हैव टू फाइट इट ओवर नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन की तरह से। और कोई इसके अंदर इशू किसी तरह का कोई भी टीसीएस वाले में? मेरे ख्याल से आप सब लोग अपने क्लाइंट्स को यही बोल रहे हैं कि डेबिट नोट करके रेज करो, या इनवॉइस के अंदर भी कोई सजेस्ट कर रहा है? अब इनवॉइस के अंदर सजेस्ट करने में मेरे पास एक सीए भाई का फोन आया, कहते हैं ये बड़ी फर्म में जो एग्जांपल दिए, नॉट रेजिंग एनी डॉक्यूमेंट। मोहित भाई अगर वो अभी अक्टूबर पहला महीना है, अक्टूबर पहला महीना है तो अक्टूबर के एंड में ही करेंगे अभी तो, है ना। एक बड़ा अच्छा सा पॉइंट किसी ने बताया, आप सुनेंगे तो वेरी गुड, डेबिट नोट, दैट इज परफेक्टली राइट। उसने बोला कि वो इनवॉइस के अंदर उन्होंने टीसीएस कलेक्ट करना चालू किया, और वो मेरे पास इनवॉइस लेके आया। वो कहता है वो था कैश सेल का इनवॉइस। कैश सेल के अंदर भी वो 1% टीसीएस कलेक्ट कर रहा है। मैं कहा भाई क्या कर रहे हो ये तुम, 1% टीसीएस का तो पता नहीं 50 लाख किसका क्रॉस करता है। मैं कहा भाई एक लिमिट के अंदर चलो आप। क्योंकि उन्होंने अपने बिलिंग स्ट्रक्चर में डाल दिया तो फिर उसमें आ जाएगा ना। प्रिंस बिल्कुल सही कह रहे हैं, रिम्बर्समेंट ऑन द बेसिस ऑफ टीसीएस सर्टिफिकेट, दैट इज आल्सो फाइन। टीसीएस सर्टिफिकेट लेट हो जाएगा आपको जब पेमेंट आया तभी, क्योंकि टीसीएस सर्टिफिकेट तो आपका होगा सर ये 3 महीने बाद, है ना, क्वार्टर के बाद। तो बेटर है कि आप अपने मंथली ही डेबिट नोट रेज कर दें, और पेमेंट आप जब मर्जी लें, लेकिन डेबिट नोट तभी के तभी रेज कर दें, क्योंकि आपको टीसीएस अगले महीने के 7 तारीख तक जमा कराना ही पड़ेगा, राइट। और कोई इसमें क्वेश्चन? चलिए आगे चलते हैं फिर। एक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये हम सब क्लाइंट्स के पास रहेगा जब मैं टीसीएस की रिटर्न भरता हूं। जैसे मैंने वो दोनों पॉइंट तो बताए थे आपको, एलआरएस और ओवरसीज टूर पैकेज के अंदर वो मेरे क्लाइंट दूसरे हैं, ठीक है। वो मेरा बैंकर हो गया एक तो, और दूसरा मेरा हो गया ये जो ओवरसीज टूर पैकेज बेचने वाला है। अब मेरे नॉर्मल बिजनेस के लिए भी जहां टीसीएस कलेक्ट नहीं हुआ उसकी डिटेल भी मैंने टीसीएस रिटर्न में भरनी है। किस किस की? जहां पर टीडीएस कट गया जिसकी वजह से मैंने टीसीएस कलेक्ट नहीं किया, जहां पर मेरा बायर जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इंपोर्टर, लाइसेंस, वो सब लोकल अथॉरिटी है वो सब। और यहाँ पर एक बार ध्यान कीजिएगा, लोगों को जरा कंफ्यूजन है, व्हाट इज स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। पीएसयू इज नॉट अ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, they are a separate undertaking, they are not government,
दे आर नॉट गवर्नमेंट. सो व्हाट इज गवर्नमेंट? बी वेरी वेरी केयरफुल. कोई भी बोल देता जी हम तो गवर्नमेंट है, हम तो गवर्नमेंट कंपनी है, जैसे कोल इंडिया बोलते हैं हम तो गवर्नमेंट कंपनी है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, राइट. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. या फिर कोई स्पेसिफिकली एग्जाम्प्ट अंडर एनी नोटिफिकेशन. और एक ये बड़ा अच्छा इन्होंने एक रूल में डाल दिया चेंज. वो क्या कहते हैं वो कि हम टीसीएस से आपकी इनकम को मैच करेंगे. कहते हैं नहीं, टीसीएस अगर मेरी ये 3 सेक्शन में है, 206C1F, 206C1G और 206C1H, क्रेडिट ऑफ टीसीएस आपको तभी दे दिया जाएगा जिस साल के अंदर कलेक्ट और पे हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट को. ऐसा नहीं उसको ईयरली आपके सेल से या कंसिडरेशन से कर भी नहीं सकते. और मैं तो ये कहता हूं कि होना तो ये चाहिए कि बोथ टीडीएस एंड टीसीएस शुड बी एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ जिस साल में टीडीएस टीसीएस कट जाए. मेरा टीडीएस आज कट रहा है, इनकम मेरी 2 साल बाद होनी है, मेरा पैसा तो आज ही कट गया, मेरे को आप 2 साल बाद क्रेडिट क्यों देते हो? टैक्स तो मैंने दे दिया ना, उसमें इसी साल मेरे को एडजस्ट कर दो. होना तो ये चाहिए. इस बार के जो एक आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अब प्री बजट भी चालू होने वाला है, तो प्री बजट के अंदर जो आपके पॉइंट्स हैं प्लीज बना के दीजिएगा. वी शैल पुट इट टू द डायरेक्ट टैक्स कमिटी टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो ये पॉइंट भी मैं उसमें डलवाने की पूरी डलवा दूंगा. अब तो कोशिश नहीं की बात कहूंगा, आप लोगों ने वहां भेजा है तो उस कमिटी के अंदर ही मैं भी वाइस चेयरमैन हूं, आई कैन डू दैट. तो आई विल ट्राई, आई विल पुट दैट इनटू दैट प्री बजट मेमोरेंडम आउट देयर. सो यस, लेकिन ये ध्यान कीजिएगा कि अब जो होगा जब मेरा रिकंसाइल नहीं होगा सेल से, इसलिए बिल में कर रहा हूँ, सब खत्म, जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी रूल में अमेंडमेंट आ चुका है. यस, सीबीडीटी ने कुछ क्लैरिफिकेशंस दिए और वो क्लैरिफिकेशन जो 206C1F से रिलेटेड दिए वो मैं कहूंगा कंफ्यूजिंग तो नहीं है, लेकिन दिस हैज क्रिएटेड सो मेनी डाउट्स. शुरू में उन्होंने कहा 206C1F की जो ट्रांजैक्शन है वो बाहर है, प्लस उन्होंने अभी जब मैंने बताया 206C1F मोटर कार वाला है, तो उन्होंने कहा था अगर कोई भी कलेक्शन डीलर से होगा तो वो एग्जेम्प्ट होगा. तो मैंने आपको बताया था जो मैन्युफैक्चरर है वो डीलर को बेचता है या डीलर को बेचता है, उस पर टीसीएस नहीं है. डीलर कंज्यूमर को देगा तो 10 लाख रुपए से ऊपर वाले के अंदर टीसीएस कलेक्ट होगा. अब इन्होंने क्या कहा है इस क्लैरिफिकेशन में, उन्होंने ये कहा, ये जो अपने 28-29 सितंबर की है, receipt from a dealer of a motor vehicle is covered under 206C1H if not subject to 201F. यानी अब ये डीलर जब ये मैन्युफैक्चरर डीलर को माल बेचेगा और ये सेल कंसिडरेशन डीलर मैन्युफैक्चरर को देगा, तो मैन्युफैक्चरर डीलर का 0.1% टीसीएस कलेक्ट करेगा, डीलर टू डीलर 0.1% कलेक्ट करेगा, जो पहले एग्जेम्प्ट था. सो देयर चाहे अमाउंट छोटा है बट यस कंप्लायंस वुड बी रिक्वायर्ड पर मंथ. सेकंड, उन्होंने कहा कि ये तो डीलर वाला कवर कर दिया उन्होंने. यहाँ पे सेल टू कंज्यूमर में, सेल टू कंज्यूमर का 10 लाख से ऊपर तो 206C1F में कटेगा, और 10 लाख से अगर नीचे तो उन्होंने कहा कि मान लीजिए एक कंपनी ने या एक एसएससी ने 9 लाख की 10 गाड़ियां खरीदी तो 90 लाख हो गई. काम का वो बाल की हाल निकालना था, अभी निकालेगा, कुछ नहीं लिखना अभी, मैं तो बात हो गई है. तो मैं उसको ना एक्सेल वाली वो ठीक है जी. तो उन्होंने कहा 90 लाख हो गया, 50 लाख क्रॉस कर गया, इस पे टीसीएस 0.1% कलेक्ट कर लो. तो पहले लोग बाग अब करते थे 10 लाख से ऊपर में टीसीएस कलेक्ट हो रहा है, इस पे नहीं हो रहा. अब एक जना अगर 50 लाख से ऊपर की पेमेंट करेगा तो यहाँ पर कवर हो जाएगा, और 10 लाख से ऊपर में वहां पे कवर. Right, so they have clarified this in this circular. Further, yes, जो हम कह रहे थे कि this 206C1H shall not apply to any sale consideration received before 8 October, but it would apply, consequently apply, including advance received on or after 1st October 2022, even if the sale was carried out before 8 October, जो कि हमने भी एग्जाम्पल से लिया. ये जो मैं एग्जांपल ले रहा था, जो मैं बता रहा था, ये तो मैं एक अपने 1 फरवरी 2020 से ही बता रहा था, बट दिस क्लैरिफिकेशन ऑन द सेम लाइंस. थैंक गॉड इट इज नॉट डिफरेंट देन व्हाट आई टुक द व्यू. जो थ्रेशोल्ड 50 लाख की है, जो आप सब लोगों ने भी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, इसका भी आप लोगों ने करेक्ट बोला, इसका भी करेक्ट बोला, सबको कंसेप्ट क्लियर है. रियली वेरी अप्रिशिएटिव कि यस 1 अप्रैल से ये कंसिडरेशन काउंट होगी.
1 अप्रैल से हो गई। प्लस उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दिया कि जो मेरे नॉन रेजिडेंट एयरलाइंस हैं वो जो फ्यूल लेंगे एयरपोर्ट्स एट इंडिया के, उसके ऊपर 2061H अप्लाई नहीं होगा, उस पे अप्लाई नहीं होगा। ये एक उन्होंने इसमें रिलीफ दिया है थ्रू द क्लैरिफिकेशन। एक्सपर्ट्स पैनल का सबको पता है कि ये सब तो 22,000 से ऊपर के इसमें आंसर्स हो चुके हैं बाय मोर देन 110 एक्सपर्ट्स। यहाँ से आप साइन अप कर सकते हैं। यहाँ पे आप साइन अप करने के बाद किसी भी सब्जेक्ट पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत सारे आर्टिकल्स, प्रेजेंटेशंस, वीडियोस, नोटिफिकेशन सब्जेक्ट वाइज है जो आप देख सकते हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स के हैं, कोई भी सर्च कर सकते हैं क्वेश्चन यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ से सर्च करके इस पे क्लिक करेंगे, आंसर आ जाएगा। एनीवन कैन यूज दिस पोर्टल। ये प्रेजेंटेशन मैं इस पोर्टल पे अपलोड कर दूंगा, आपको यहाँ से मिल जाएगा, इनकम टैक्स में जाके, या डायरेक्टली भी मिल जाएगा। प्लस मैं यहाँ पर भी अपलोड करूंगा ये प्रेजेंटेशन lunawat.com पे, और ये फ्री मोबाइल ऐप है लुनावत का, इस पे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे रेडी टू यूज चार्ट्स भी हैं जिससे किससे कैश फ्री गिफ्ट ले सकते हैं और टैक्स फ्री गिफ्ट ले सकते हैं, चाचा, दादा, दाना, नाना, मामा, वो जो भी हैं। और सारे इसमें अपडेट्स नोटिफिकेशन वाइज 2007 से हैं। So any questions now we can take, please. Any questions now? एक क्वेश्चन अभी शुरू में डिस्कस कर रहे थे जब हमने ज्वाइन नहीं किया था सब लोगों ने, बहुत कम लोग थे, कि ये यूडिन कितना क्रिएट करना है टैक्स ऑडिट पे। प्रिंस भाई आप डिस्कस कर रहे थे, तो यूडिन क्या है कि अगर मैं 3CA इशू कर रहा हूँ, यानी टैक्स ऑडिट मेरा 3CA वाला है, तो 2 यूडिन है, एक मेरा बैलेंस शीट का जो कि दूसरे लॉ में है, और एक मेरा 3CA के लिए। अगर मैं एक 3CB इशू कर रहा हूँ यानी प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप वाला, उस केस में एक ही यूडिन होना है, विच इज फॉर 3CB। 3CB होगा तो एक ही यूडिन होगा, क्योंकि आपकी एक ही ऑडिट हो रहा है, एक ही कंप्लायंस हो रही है, जिसमें आपका ऑडिट रिपोर्ट और 3CD दोनों इकट्ठा। हाँ जी, किसी का भी? मुकेश मित्तल जी को नमस्कार सर। सोसाइटी केस में सर? हाँ जी सर, सोसाइटी केस में जी, सोसाइटी के केस के अंदर सोसाइटी एक्ट में, राकेश जी, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में ऑडिट होता है। हाँ, 12 में भी होता है, सोसाइटी में भी। तो सोसाइटीज वाला जो ऑडिट होगा उसके लिए एक यूनिट, और जो 10B में होगा उसके लिए एक यूनिट। 10B के लिए मतलब 2 हो गए, सोसाइटी के लिए मतलब? भाई साहब देखो, 2 ऑडिट हो रहा है ना। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो ऑडिट हो रहा है वो मेरा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में हो रहा है, ठीक है जी, और एक मेरा हो रहा है 10B। बिल्कुल ठीक जी, तो 2 चाहिए इसमें। थैंक यू सर। राकेश जी भी जजर से हुए हैं, बेसिकली यूनिट एज पर ऑडिट। बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ ठीक है सर यूडियन पे क्वेरी चाहिए, पूरी है जी, कॉल आई होगी कोई, कॉल के बाद आवाज कम हो जाती है, अब हो जाएगी जो। सर यूडियन पे क्वेरी सारी है काफी, कि 2 यूडियन में जैसे अभी अनुज, इसमें सेम डेट में यूडियन जनरेट करना सर, या एक दिन लेट हो गया तो कोई प्रॉब्लम है उसमें? जैसे मैंने ऑडिट रिपोर्ट आज कर दी और मैंने भूल गया उसको, 15 दिन भी भूल गया, तो फिर उसमें क्या करना सर? देखो, पहला तो ये है कि आप आज की डेट में इनकम टैक्स के कोई भी फॉर्म है, चाहे वो 15CB है, चाहे 29B है, चाहे 3CA 3CB है, या कोई सा भी हो, इन दैट केस प्लीज सी कि आपको यूडिन एक तो साथ करना है। लेकिन उन्होंने एक एग्जेम्पशन दिया, उन्होंने ये कहा कि 15 दिन के अंदर कर लो। 15 दिन के अंदर आप अपने पेंडिंग एक्टिविटी में जाके यूडिन अपलोड कर सकते हैं। ओके, तो आपने वहां पे यूडिन अपलोड कर दिया। अगर 15 दिन से डिले हो गया तो अब मुझे नहीं पता कि दे हैव स्टार्टेड दिस और नॉट। जब हमने एक वेबकास्ट किया था यूडिन डायरेक्टरेट का, मैं यूडिन डायरेक्टरेट में हूं नहीं, लेकिन वो जब वेबकास्ट हुआ था तो आई वाज वन ऑफ द स्पीकर देयर। सो आई कन्फ्रंटेड विद दिस एडिशनल डायरेक्टर CPC। तो उनसे जब बात हुई तो वो कह रहे थे कि हमने इसको सिंक्रोनाइज कर लिया है, और हमारे यूडिन डायरेक्टरेट ने और इनकम टैक्स ने, कि जितने भी यूडिन जनरेट होंगे उसके अंदर जो जो फील्ड्स आप चूज कर रहे हैं वही आप अपने रिटर्न जब फाइल कर रहे हैं, रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं, उसमें सेम लिंक कीजिएगा। और अगर 15 दिन को क्रॉस कर गया, 15 दिन का टाइम दिया, पहले तो वो 15 दिन नहीं दे रहे थे, बट पर 15 दिन क्रॉस कर गया तो फॉर्म को इनवैलिड मान लेंगे। ओके, सो प्लीज डू विद इन 15 डेज। और दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने साथ में ये भी कहा
कि ये ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न किसको मानेंगे, डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिपोर्ट कब मानेंगे, डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिपोर्ट मानेंगे जब जो टैक्स पेयर है उसको एक्सेप्ट कर ले। यानी आपने 31 अक्टूबर को टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल की, 31 दिसंबर को, और क्लाइंट को बोलो भैया उसको अप्रूव कर लो, वो कह रहा है मैं तो 31 दिसंबर मना रहा हूँ, मैं तो जनवरी में करूंगा, 2-4 दिन बाद करूंगा, तो जनवरी मानी जाएगी। ओके सर। सर 3CB अपलोड करते हैं ऐसा हो? हाँ प्रमोद सर, बोलो बोलो राकेश जी। 3CB अपलोड करते हैं तो पहले यूनिट नंबर मांगता है सर उसमें? अरे सर पहले मांगता है, आप बाद में भी दे सकते हो, बता तो रहा हूँ। अच्छा, यही तो बता रहा हूँ। आप कहते हो एक्सेप्ट करने के बाद में इनफोर्सेबल होगा, अगर उसी दिन अगर एक्सेप्ट नहीं होता तो कैसे करा जाएगी? बता तो रहा हूँ सर, आपके पास 15 दिन का टाइम है, माई एक्टिविटी में जाके अपलोड कर लो। नहीं समझे नहीं आप सर। आप ये कह रहे हैं यूडिन की इन्फोर्समेंट डेट मानी जाएगी जब वो एक्सेप्ट करेगा जी क्लाइंट। यूडिन की डेट नहीं मानी जाएगी। अच्छा भाई साहब, टैक्स ऑडिट की सबमिशन की डेट मानी जाएगी। ओके सर, थैंक यू सर। प्रिंस मित्तल जी ने क्वेश्चन लिखा है, मैं जिसके फेवर में नहीं क्योंकि दैट विल नॉट गिव अस गुड रेपुटेशन। बहुत सीधी सी बात है कि भाई यूडिन को क्यों डेट बढ़ाई जाए, और बढ़ नहीं सकती। अब तो यूडिन वर्ल्ड ओवर एक्सेप्ट किया जा रहा है। इंडिया इज द, अवर आईसीआई इज द पायनियर इनटू दिस। बहुत सारी कंट्रीज अडॉप्ट कर रही हैं, दे आर अप्रिशिएटिंग इंडिया लाइक दिस। वो कभी उन्होंने ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। तो कई चीजों में आईसीआई बहुत आगे लीड लेके जा चुका है, और इसको सभी गवर्नमेंट एजेंसीज बड़ी अप्रिशिएट कर रही हैं। इससे बैकआउट होने का कोई तरीका है नहीं। आई थिंक सर कोई और क्वेश्चन तो है नहीं सर। कोई भी और स्पेसिफिक क्वेश्चन हो, टीडीएस, टीसीएस, टैक्स ऑडिट, इनकम टैक्स, कम ले लो तो 5-7 मिनट अपने पास, 10 मिनट हैं तो वी कैन टेक। हेलो, हाँ जी सर ये आजकल यूटिलिटी काम नहीं कर रहा सर, इसका 3CB, इसका 19-20 का आईटी 4 का जी। एक बार आप उसमें टिकट रेज करो इनकम टैक्स हेल्पलाइन, क्योंकि कुछ हमारे दोस्तों ने बताया कि शुरू में प्रॉब्लम आ रही थी, तो उन्होंने टिकट रेज किया, उसको वो ठीक कर दिया। कुछ एरर्स आ रही थी, स्पेशली जो 8A आया उसके अंदर वो एरर्स आ रही थी। हाँ 3CD का, अब आईटीआर की बात कर रहे हैं, 3 उसकी बात कर रहे हैं। आईटीआर 4, आईटीआर तो जा रहे हैं, बहुत पुराना है। 19-20 का नहीं जा रहा है सर, आईटीआर 4 सर जा रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं हो रहा उसमें, जा रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं आ रही सर, 1% भी। कोई नेटवर्क इशू होगा राकेश भाई आपके इधर? अच्छा जी। मोहित जी का क्या कहना है? सम सॉफ्टवेयर आर टेकिंग डेट ऑफ फर्निशिंग एज डेट ऑफ अपलोडिंग बाय प्रोफेशनल। नहीं, उनको मोहित जी बोलो चेंज करेंगे, क्योंकि अभी उन्होंने इसको क्लैरिफाई किया कि उसी डेट को ले रहे हैं, जबकि वो कहते हैं अल्टीमेटली टैक्स पेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू सबमिट द ITR and the tax audit report which has been obtained. So that moment the taxpayer accepts it, it will be deemed as date of furnishing of the report. मेरे ख्याल से सबके क्वेश्चंस खत्म हो गए। हाँ जी। Thank you sir. Thank you for such a wonderful session, and thank you for sharing your valuable knowledge on such an important topic of TDS and TCS provision with us. And now I request CA Prince Mittal for a vote of thanks. CA Prince Mittal ji. बहुत धन्यवाद सर, अपना स्पेयर टाइम निकालने के लिए स्कूल ब्रांच की तरफ से। आपसे रिक्वेस्ट है हमेशा हमारी अवेलेबल रहिए और अपना ज्ञान हम सबको दे दीजिए सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हमेशा अवेलेबल है सर, एनी टाइम। Thank you. Really, it was very wonderful session, sir. Really. Thank you राजेश। ज्ञान मिलता है आपसे बहुत ज्यादा। अरे सर, एनी टाइम भाई। Thank you so much. Thank you.